My name is Irfan Saeed, and I have done my bachelor's in space science from Institute of Space Technology. And my area of research is actually observational astronomy, and my focus was on discovering and studying exoplanets. Those are the planets which are revolving, orbiting other stars other than our sun. Sun is also a star. So basically, we observe stars and their spectroscopic. We do spectroscopic studies of those stars, and also using through their light, we see a very small dip in their brightness when a planet comes in front of that star. I have covered that in my last lecture. In this lecture, I will cover what we have learned from the light that we detect from the star directly. Basically, there are two different methods. One is called photometry, and second is spectroscopy. From the photometry, it's only the brightness that we actually collect, and in spectroscopy, we decipher that brightness into the spectrum, and then we know the composition and all this stuff. So in this lecture, we will study how the stars are being formed in the universe. What are the parameters which are very crucial for the formation of star. So the topic is how a star is born, the never-ending story of a star and our connection with the cosmos. Never-ending story is because the stars are not like, and they do not exist for the endless period of time. They have their age. They born, they live their life, and they die at the end. और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि वो जो टाइम पीरियड है या वो जो एज है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है किसी भी स्टार की, और हम उनके साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं. How we are connected with those stars and all these you can say all these celestial bodies that we observe in the sky. I have put this slide because in our world we used to whenever we used to say stars, we the pictures, the images that come in our mind is the famous actors which are that are actually making movies like Shah Rukh Khan, everyone knows. So, but these are not the stars that I am talking today. Sorry. You didn't put any female star here. Yeah, I didn't think of it. बस ये तस्वीरें आई सामने तो मैंने इनको डाल दिया. So the rare stars are actually those which are in the night sky. यहाँ पे तो जो स्काई है वो काफ़ी पोल्यूटेड है. वी डोंट सी दैट मच नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. लेकिन अगर हम नर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे जाएं जहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं है, और जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल क्लियर है, देन वी कैन सी a huge number of stars in the sky. Even actually from the northern sky we can see the spiral arm of our own galaxy in the sky. और अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर में हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में या चिले में, तो हम bulge of our own galaxy, we can observe the bulge, the very center of our own galaxy, the supermassive black hole where resides. और हमारी अपनी गैलेक्सी के अराउंड 200 बिलियन स्टार्स हैं. तो मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर एक्चुअली इन दैट एरिया जो कि सदर्न स्काई से हमें ऑब्जर्व होता है. हम बचपन में पढ़ते हैं पोएम में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और फिर हम नेक्स्ट जो लाइन पढ़ते हैं, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. लाइक वी डोंट नो व्हाट यू आर बट वी सी द ट्विंकलिंग ऑफ दो स्टार्स. फर्स्ट थिंग इज स्टार्स डोंट ट्विंकल एक्चुअली. हमें इसलिए ट्विंकलिंग नजर आती है क्योंकि व्हेन द स्टार लाइट कम्स टू अस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी और वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स, उससे जब टकराती है तो लाइट स्कैटर होती है. लाइट स्कैटर होने की वजह से
वो कभी ब्राइटनेस उसकी कम हो रही होती है, कभी ज़्यादा होती है, एंड ड्यू टू दिस फ्लक्चुएशन इन द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार हमें वो फ्लक्चुएट करते हुए या ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं. बट इफ़ वी गो टू द स्पेस, और हम स्पेस में जाके अगर हम सब अपने स्पेस में ऑब्जर्व करें कॉस्मोस में, तो ईच स्टार वुड हैव अ वेरी constant brightness, they won't twinkle. And secondly, what I have written here is कि now I know who you are. क्या we know very well कि आपकी composition, इन stars की composition क्या है, इनका लाइफ स्पैन कितना है, what is being the major source of their energy, जिसकी वजह से वो ब्राइटनेस या वो लाइट जो है वो उनके अंदर से सेंटर से जो निकल रही है, उनका मेन सोर्स क्या है. लेकिन बैक इन 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, साइंटिस्ट डिडंट नो, एस्ट्रोनॉमर्स को नहीं पता था, अंटिल द वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट केम, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने बताया कि E=mc². आई विल कवर विद दिस स्लाइड एज वेल कि जो एनर्जी है वो मैस में कन्वर्ट होती है, एंड मैस कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट गोइंग ऑन इन ईच स्टार. हर स्टार के कोर में यही रिएक्शन हो रहा है जिसमें मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. सो स्टार्स आर अलाइव, क्या वो ज़िंदा हैं? कैन वी से दैट स्टार्स लिव देयर लाइफ और दे आर अलाइव? इस क्वेश्चन को भी हम ड्यूरिंग द लेक्चर कवर करेंगे कि लाइफ की डेफिनेशन क्या है. वी हैव कम अप विद ओनली वन टाइप ऑफ लाइफ विच इज़ अर्थ लाइफ, कि DNA है, हम सांस लेते हैं, वी नीड ऑक्सीजन, या फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन दिस इज़ ओनली वन टाइप ऑफ लाइफ. अगर हम इन एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, लाइक कार्बन इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन आवर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऑफ द DNA. लेकिन अगर हम कार्बन से रिलेटेड देखें तो सिलिकॉन हैज़ आल्सो द एबिलिटी टू कंबाइन विथ 4 other atoms. It has the same ability. हो सकता है कि in other parts of the cosmos कहीं और सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन काफ़ी रिलेटेड हैं. तो जिस तरह कार्बन बाकी एलिमेंट्स के साथ बड़े इजीली कंपाउंड्स बना लेता है, सेम वे सिलिकॉन भी बना सकता है. सो द थिंग इज़ के वी ओनली नो वन टाइप ऑफ लाइफ, बट इफ़ वी कंपेयर the basic definition लाइफ के लिए क्या ज़रूरी होती है, we would say yes, stars are alive because they live their life, they are being born, they die, and from the death of those stars new stars are being born. So how many stars are there in the cosmos? It is being said that there are 10⁻21 stars in the cosmos, जो कि अभी तक की कैलकुलेशंस बताती हैं, लाइक इट्स अराउंड 1 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स इन द कॉस्मॉस. लेकिन अभी भी इट्स नॉट एंडिंग. हमारी ऑब्जर्वेशनल जो कॉस्मॉस है या फिर ऑब्जर्वेशनल जो यूनिवर्स है, हमारी एंडिंग है कि हम एक लिमिट तक लाइट को देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट. लेकिन वहाँ तक की हमारी जो अप्रॉक्सीमेशन है उसके मुताबिक देर आर अराउंड 1 सेक्सटिलियन, मीन्स के 10⁻21 स्टार्स इन द यूनिवर्स. सो हाउ द स्टार्स आर कनेक्टेड विद अस, ये भी इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं इसी लेक्चर में कवर करूँगा. सो वेयर द स्टार्स आर बॉर्न, वी नो नेबुलास आर द स्टेलर नर्सरीज. ये रेमिनेंट ऑफ अ सुपरनोवा होता है. जब एक मैसिव स्टार्स कितना, मिनिमम 8 सोलर मैसिस, यानी कि हमारे पास अगर एक स्टार है जो कि मिनिमम 8 सोलर मैसिस का है, एंड इट इज़ अबाउट टू एक्सप्लोड, वो अपनी एज के बिल्कुल एंड पे है, और जब वो एक्सप्लोड होगा, जब वो एक एक्सप्लोजन करेगा, धमाका करेगा, तो वो अपने अंदर जितने भी उसने एलिमेंट्स कुक किए हैं या जो भी उसकी शेल्स में मौजूद है, वो सारा का सारा उसने ब्लो अप कर देना इनटू दी स्पेस. और उसी मटेरियल से वही जो मॉलिक्यूलर क्लाउड्स बन रहे हैं जो कि यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं. दिस इज़ द वेरी फेमस पिक्चर ऑफ ओरायन नेबुला. So this is the stellar nursery of new stars being born in the Orion Nebula. So yes, nebulas are the star making factories. These are the regions where new stars are being born. These are the supernova remnants. Here is another picture of a supernova. This is a very famous picture of pillars of creation. It's part of Eagle Nebula. और यहाँ पे जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वो मॉलिक्यूलर क्लाउड्स हैं. ये एक डेंस मटेरियल है जहाँ पे नए स्टार्स जो हैं उनको बनने की जो है वो
कंडीशंस प्रोवाइड हो रही हैं कि वहाँ पे मटेरियल जहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे मैस एक जगह पे एक्यूमुलेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे ग्रेविटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। और जब मैस गिरता जा रहा होता है एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही जगह पे ऊपर, वो अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ती है, मैस ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटी और ज़्यादा एक्सीड करती है। ड्यू टू दिस एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसकी जो एक लालच है, उसकी जो ग्रीड है उस क्लाउड की या उस क्लम्प की, वो बढ़ती जाती है कि वो अपने ऊपर और ज़्यादा मटेरियल गिराना शुरू कर देता है, अनटिल इट कम्स अ टाइम कि क्योंकि उसके ऊपर मटेरियल गिर रहा है तो प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ड्यू टू दैट इंक्रीज इन प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट कम्स अ लिमिट जिसे हम जीन्स क्राइटेरिया कहते हैं, वो मैं आगे कवर करूँगा। ड्यू टू दैट लिमिट, उस लिमिट के ऊपर आके उसमें प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो अपने आसपास के मटेरियल को, आसपास के सराउंडिंग को फेड आउट करना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ दैट हीट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार। तो जो उसने अपने ऊपर कवर कर लिया, जो उसका पार्ट बन गया, दैट्स बिकम द स्टार, और जो आसपास का एरिया है उसको वो शेड आउट कर देता है, उसको वो दूर कर देता है। ओके, द थिंग इज, मैंने अभी बात की कि व्हाट आर द कंडीशंस, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। स्टार्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स, और स्टार से मिलके गैलेक्सीज बनती हैं। सो देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, वन इज कॉल्ड एलिप्टिकल गैलेक्सी एंड सेकंड इज स्पाइरल गैलेक्सी। एलिप्टिकल गैलेक्सी नेम से पता लग रहा है कि इट्स राउंड शेप गैलेक्सी, और इसमें जो स्टार्स होते हैं वो फॉर्मेशन ख़त्म हो चुकी होती है, जितना भी मटेरियल वहाँ पे मौजूद था वो सारा उन्होंने कंज्यूम कर लिया होता है, एंड दे आर द ओल्ड एज स्टार्स दैट मेक द स्पाइरल गैलेक्सी। एक सेकंड में सर से जी जी सर, जैसे कि ये है स्पाइरल गैलेक्सी है, इसकी अगर आप ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो इज इट नॉट गोइंग टू लुक लाइक अ स्पाइरल गैलेक्सी और अ समब्रेरो हेड गैलेक्सी? A spiral galaxy will always have arms in Exactly. it, and of course you can look at it from different angles. अगर आप बिल्कुल ऑन एज देखें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्पाइरल गैलेक्सी Exactly. है कि नहीं। जब ऊपर से देखें तो आपको ये रोटेशन, तो उसके अंदर रोटेशन है। ये रोटेशन क्यों आई? इट्स एक्सीडेंटल। बिग बैंग हुआ, देयर वाज मटेरियल फ्लंग आउट, और कुछ इस लेफ्ट रोटेट करते हैं, कुछ राइट रोटेट करते हैं। द नेट एंगुलर मोमेंटम इज प्रोबेबली इक्वल टू जीरो। Exactly. शायद आप इसकी तशरीह करना चाहें। Sure, I would definitely. माय क्वेश्चन वाज कि है इलिप्टिकल गैलेक्सी वो वाली भी, ये वाली भी? No. आपकी जो जिस एंगल से आप उसको देख रहे हैं दैट डिटरमिन्स। No. No. Actually, types are different. अगर आप इस गैलेक्सी को एज ऑन देखेंगे तो इट वुड बी लाइक अ डिस्क, बट दिस गैलेक्सी वेर एवर एंगल यू वुड सी, आप जिस मर्जी एंगल से देखें ये आपको राउंड ही नजर आएगी। ठीक है ना, इट वॉन्ट बी लाइक एज ऑन, या फिर इसको डिस्क लाइक नहीं आपका। दैट्स वाई स्पाइरल गैलेक्सीज आर डिस्क लाइक, आर ऑन मिल्की वे गैलेक्सीज ए डिस्क लाइक स्पाइरल गैलेक्सी। लेकिन हमने यूनिवर्स में बहुत सारी एलिप्टिकल गैलेक्सीज भी देखी हैं। नाउ हाउ वी नो कि हमारी स्पाइरल गैलेक्सी है? एज ऑफ द गैलेक्सी भी एग्जैक्टली, बिल्कुल। एज ऑफ गैलेक्सी जो है वो उसके स्टार्स से हम पता लगाते हैं, स्टार्स की एज से, शेप से तो पता। देखें ना, जब हमने स्टार्स की एज को पता लगा लिया, नाउ वी नो कि यहाँ पे जो स्टार्स हैं वो ओल्ड एज स्टार्स हैं, एंड दैट्स वाई वी नो कि यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन ख़त्म हो गई है, देयर इज़ नो लेफ्ट बिहाइंड मटेरियल टू मेक न्यू स्टार्स, और यहाँ पे जितने भी स्टार्स हैं वो पुराने स्टार्स हैं। लेकिन अगर हम स्पाइरल गैलेक्सी में देखते हैं, मैं एचआर डायग्राम पे जब आऊँगा तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरह से इनकी एज को डिसाइफर करते हैं। लेकिन जब हम स्पाइरल गैलेक्सी में देखते हैं तो देयर आर रीजन्स, ये जो इसकी स्पाइरल आर्म्स हैं, यहाँ पे देयर इज़ मॉलिक्यूलर क्लाउड्स, ठीक है ना, यहाँ पे इंटरस्टेलर मीडियम है जो कि इकट्ठा हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको पिलर ऑफ क्रिएशन दिखाया, दैट्स आल्सो मटेरियल दैट इज़ बीइंग यूज्ड टू फॉर्म न्यू स्टार्स। और सेकेंडली एक और जो चीज़ एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली ऑब्जर्व की है कि जो डार्क मैटर है,
वो काफ़ी रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। और ये किस तरह से कि इन द आउटर रीजन ऑफ द गैलेक्सी जो नॉर्मल मैटर है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर, उसकी जो एक किस्म वो अपनी एग्जिस्टेंस को शो करता है विद ग्रेविटी, कि यहाँ ये जो आउटर रीजन्स में स्टार्स हैं ये उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं जिस वेलोसिटी के साथ इनर रीजन ऑफ स्टार्स मूव कर रहे हैं। बट Kepler's third law says that the velocity decreases with the increase in distance, like in our solar system, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही। That's why आप जिस भी गैलेक्सी को देखेंगे वो अपनी शेप को नहीं चेंज करता। अगर ये वाले स्टार्स स्लोली मूव करते और ये वाले स्टार्स स्पीड से मूव करते तो ये अपनी शेप को बरकरार ना रख पाती गैलेक्सीज, ख़ास तौर पे जो स्पाइरल गैलेक्सीज हैं। सो दीज रीजन्स जहाँ पे डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो जब ये गैलेक्सी मूव कर रही है तो जब वो डार्क मैटर वाले रीजन से गुजरती है तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जब मैंने अभी ऑब्जर्व किया जिस तरह से कि जब ट्रैफिक बिल्कुल आम होती है, स्लो होती है, बिल्कुल वैकेंट स्पेस होती है तो आप बहुत स्पीड से गुजर जाते हैं, यू वॉन्ट हैव टू गो थ्रू द रश। लेकिन जैसे ही कोई डेंसर एरिया आता है आपको बहुत भीड़ में से गुजरना पड़ता है। एंड सेम गोज विद दीज रीजन्स। अब इन रीजन्स में क्या होता है कि जब स्पाइरल गैलेक्सी मूव करी और वहाँ पे कोई डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस मौजूद है तो जब वहाँ से वो मैटर गुजरेगा और उसको ज़्यादा ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूलर क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द रीजन्स कि वहाँ पे स्टार फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। सेकेंड स्टार फॉर्मेशन की जो वजह है या रीज़न है वो ये है कि जब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जी ड्रैग है वो ड्रैग ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह, जी डार्क मैटर के ग्रेविटेशन इफेक्ट। सो सेकंड कॉज इज द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब होता है तो वो हर डायरेक्शन में जो है ना एक शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल वेव्स जिसे हम कहते हैं। उसकी वजह से जब कंट्रैक्शन होती है इन द स्पेस तो जहाँ पे ये मटेरियल मौजूद होता है वो अगर पहले एक्टिव नहीं था तो उस कंट्रैक्शन की वजह से वो मटेरियल एक दूसरे के आसपास आना शुरू हो जाता है। इट्स लाइक लाइक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जो चीज़ अगर स्टैटिक है तो वो स्टैटिक रहेगी इन स्पेस, और अगर वो आपने उसको मोशन दे दी है, एक तरफ आपने उसको धकेल दिया है तो अपनी मोशन को बरकरार रखेगी अनटिल एंड अनलेस कि कोई और चीज़ उसको ना रोके। तो जब वो मोशन स्टार्ट हो जाती है तो वो क्लम्प जो बनना शुरू हो जाता है वो ग्रेविटी की वजह से मटेरियल को अपने ऊपर फॉल करना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट्स बिकम द रीज़न और द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। दीज आर द पिक्चर्स विच टेकन बाय हबल टेलीस्कोप के जहाँ पे जो है ना ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला था और यहाँ पे नए स्टार की जो है ना बर्थ हो रही है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जो उसकी एक्सप्लोजन की वजह से एक तो उसने अपने आसपास के एरिया जो है ना उसको क्लियर किया है, और यहाँ पे क्योंकि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा था तो उसने जब एक साइड पे उसको मूव किया है तो उस मटेरियल के इकट्ठे होने की वजह से यहाँ पे नए स्टार की फॉर्मेशन शुरू हो गई है। एंड या दिस इज़ द वेरी रिसेंट पिक्चर टेकन बाय JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो यहाँ पे इस जगह पे जो है, अच्छा जब एक जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जब स्टार फॉर्मेशन शुरू होती है तो जो मटेरियल तो उसने अपने ऊपर कोलैप्स करवा लिया होता है और जो कि उसकी न्यूक्लियर फ्यूजन के ट्रिगर के लिए ज़रूरी होता है, उसके बाद जितना भी मटेरियल होता है उसको वो क्या करना शुरू कर देता है, एक किस्म की एक्रीशन डिस्क बनती है जिसकी वजह से जो उसके पोल्स के ऊपर जितना भी मटेरियल होता है उसको वो बाहर की तरफ निकालना शुरू कर देता है। दिस कैन बी सीन इन दिस पिक्चर कि ये जो और ग्लास शेप जो यहाँ पे पिक्चर बनी है ये बिल्कुल सेंटर में एक स्टार फॉर्मेशन हो रही है, और ये जितना भी मटेरियल उसके स्टार फॉर्मेशन के बाद उसको नहीं, या जो वो एक्सेस था मटेरियल उसको उसने यहाँ पे बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। दिस इज़ द सिमुलेशन ऑफ हाउ अ स्टार इज़ बीइंग बोर्न। स्टार फॉर्मेशन जो है वो साल या कुछ सालों की फॉर्मेशन नहीं होती, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हम किस तरह से पता लगाते हैं कि अच्छा दिस इज़ द पाथ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार।
तो हम मुख्तलिफ रीजन्स ऑफ स्पेस में देखते हैं कि कोई एक हर जगह पे जो स्टार फॉर्मेशन होती है वो स्पेसिफिक स्टेजेस में हो रही होती है। तो हम उन सब जगहों पे, अगर एक जगह पे फर्स्ट स्टेज में है, दूसरी जगह पे दूसरी स्टेज पे है, तीसरी जगह पे तीसरी स्टेज पे है, तो हम उनके जो वहाँ पे फिज़िकल लॉज एक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या पैरामीटर्स हैं, वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, उन सब को हम स्टडी करते हैं, उन सब को हम फिर हम कंप्यूटेशनली उनको रन करते हैं। और उनको रन करने के बाद फिर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो क्लम्प्स आपस में इकट्ठे हो रहे हैं वो किस तरह से जो है वो एक स्टार की फॉर्मेशन में आते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स इज़ अ गेट वे सब्जेक्ट टू टीच in schools. Why? Because it not only actually gives us a glimpse of how physics is being used in studying the cosmos, लेकिन बल्कि इसके साथ साथ हमें केमिस्ट्री भी पता लगती है कि व्हाट्स द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स। हम क्योंकि एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो हमें उनकी केमिस्ट्री का पता लगता है। फिर देयर कम्स अनदर पोर्शन विच इज़ कॉल्ड एस्ट्रोबायोलॉजी, जिससे हम पता लगाते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स या जो एलिमेंट्स फॉर्मेशन हुई है इन दी कोर ऑफ अ स्टार, जब वो बस्ट करता है वहीं से फिर नए प्लैनेट्स बनते हैं, नए सोलर सिस्टम्स बनते हैं, तो वहीं पे फिर एक अर्थ लाइक प्लैनेट भी बनता है जिसके ऊपर लाइफ स्टार्ट होती है। सो एस्ट्रोफिजिक्स इज कनेक्टेड विद ऑल दी अदर डिसिप्लिन्स, इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। और अगर हम इसे अपनी एलिमेंट्री लेवल पे इन्वॉल्व कर लें कि बच्चे जो हैं अगर इन्हें स्कूल लेवल पे पढ़ना शुरू कर दें, दे वुड हैव अ बेटर कंसेप्ट ऑफ ऑल अदर फील्ड्स एज वेल, कि उन्हें पता होगा कि अच्छा केमिस्ट्री किस तरह से रोल प्ले करती है इन साइंस, बायो किस तरह से रोल प्ले करती है, एंड ऑफ कोर्स फिजिक्स किस तरह से रोल प्ले करती है इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स एंड आवर कनेक्शन विद इट। Everything we know about the stars, formation, ingredients, evolution and destiny, we learn by decoding the information in the starlight। के एस्ट्रोफिज़िक्स में यानी कि जो एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं, अब उनके पास कोई लैब तो नहीं होती, कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते कि वो उनको टच करके या मैथ्स फाइंड कर लिया या अच्छा इनको आपस में रिएक्शन करवा दिया लाइक इन केमिस्ट्री। इन एस्ट्रोफिजिक्स वी ओनली ऑब्जर्व द स्काई, and what we observe, we only observe the starlight, and from that starlight we know the mass of star, the age of that star, ठीक है, वो कितना बड़ा है स्टार, ठीक है ना। so all the information related to that object, specifically that star, we only decode from the starlight। so I was talking about the minimum mass which is required for the star to ignite fusion. So this is the very famous scientist in astrophysics known as Sir James Jeans. He derived a relationship between mass, density and temperature, कि जब क्लम्प ऑफ मटेरियल एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू होता है तो मैस की वजह से डेंसिटी बढ़ती है, एंड ड्यू टू दैट इंक्रीज इन डेंसिटी प्रेशर इंक्रीज होता है, एंड दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और उसने फिर एक लिमिट बताई थी कि अगर इतना मैस या इतनी डेंसिटी अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करती है किसी भी एरिया में, एरिया इन द यूनिवर्स नेबुला में, तो वहाँ पे देर इज़ मोस्ट प्रोबेबल चांस कि वहाँ पे स्टार फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर सकती है। और वो जो जीन्स क्राइटेरिया का जो इक्वेशन है, दीज आर द इक्वेशन। दिस इज द जीन्स मैस विच इज related to the temperature and radius of that molecular cloud, and g is the gravitational constant and m is the molecular mass, average molecular mass, and this is the gene's density which is related to temperature and mass of that molecular cloud. This is a picture of star cluster. अब हम जब भी स्टार्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम इंडिविजुअल स्टार्स की नहीं लेते, वी एक्चुअली स्टडी स्टार्स इन अ बंच जो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे आपको एक टाइप का स्टार नहीं मिलता। यू वुड सी मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टार्स। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, यू कैन सी ब्लू स्टार्स,
some white stars and some red stars. हर एक की अपनी composition है, they are living in their own stage of their life, और इनका जो ending period है वो भी different है from each other. So back in 19th century, astronomers, how they observed the universe, तब इतनी हाई-फाई, इतनी ज़्यादा advanced technology नहीं थी, तो although they had telescopes, तो वो telescope के साथ तब कैमरा भी इतना एडवांस नहीं था, लाइक अभी जिस तरह से डिजिटल कैमरास हैं, तो वो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज़ के फोटोग्राफिक प्लेट्स जो है ना वो अटैच करते थे विद दी टेलीस्कोप, एंड दे यूज टू कलेक्ट द लाइट विच इज़ नोन एज एस्ट्रोफोटोग्राफी, के इमेजेस वो बनाते थे, इमेजेस कलेक्ट करते थे ऑफ दी स्काई, जो कि इस तरह से जो जितना डार्क स्पॉट होता था, इट मीन्स द मोर ब्राइट दैट ऑब्जेक्ट इज. दिस इज़ द इमेज ऑफ एन नेबुला, और वहाँ पे जो है वो स्टार फॉर्मेशन कुछ हो चुकी है और कुछ हो रही है इन दी सेंटर. Then that was the photometry that actually showed the image, and Newton actually deciphered the light. And Newton ने actually decipher नहीं किया था, it was about to convert the light into the spectrum, लेकिन he wasn't able to do that. उसके एक और साइंटिस्ट था नहीं, जिसने फर्स्ट टाइम जो है वो स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट किया था लाइट को प्रिज्म रख के. नहीं, न्यूटन ने किया था, लेकिन इट डिडंट एक्चुअली, कि यहाँ पे जो बिल्कुल के जो एब्जॉर्प्शन लाइंस आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं. एनी हाउ, सो ही वाज द फर्स्ट वन जिसने कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुनियाद रखी थी कि व्हाट वी कैन डिसाइफर फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्टार. यहाँ पे आप अगर देखें तो दीज आर द एब्जॉर्प्शन लाइंस ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम, एंड वी कैन सी, वी नो फ्रॉम द एटॉमिक फिजिक्स कि हर एटम की अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है टू एब्जॉर्ब लाइट इन सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स. उन वेवलेंथ्स में वो एब्जॉर्ब करते हैं, और वो उनका एक फिंगरप्रिंट होता है, एक सिग्नेचर होता है कि wherever we see that absorption of light, then we can decipher, we can predict के यहाँ पे वो elements मौजूद हैं. Like here we can see the calcium absorption lines, hydrogen absorption lines, और इसी तरह से iron, all these other elements as well, जो कि हमें बताते हैं कि हमारा जो सन है वहाँ पे different एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि उसने ख़ुद तो नहीं प्रोड्यूस किए, एक्चुअली इट फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ अ सुपरनोवा. हमारा जो सन है वो एक सुपरनोवा के रेमिनेंट से प्रोड्यूस हुआ था. तो वो जो सारे एलिमेंट्स, जो हायर एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, वो उसी रेमिनेंट की वजह से उसके अंदर आए हैं, जो कि प्रीवियस स्टार ने क्या किया था, वहाँ पे शेड आउट किया था मटेरियल, उसी से वो नया हमारा सन बना. लेकिन हमारे सन में जो अभी फॉर्मेशन हो रही है, डेट्स एक्चुअली हीलियम फॉर्मेशन. हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज़ करके हीलियम फॉर्म हो रही है, बट द अदर एलिमेंट्स वर हैज़ कम फ्रॉम दी फॉर्मेशन पीरियड, जो कि जब उसकी फॉर्मेशन हो रही थी. एनी हाउ, this is the continuous spectrum of stars, which is also called black body spectrum. ठीक है. So black body spectrum हमें क्या कहता है, क्या बताता है कि the less the temperature of the star, the less dip of that black body spectrum would be. कि अगर हमारे पास स्मॉल एक स्टार है जिसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है और वो इतना ज़्यादा बर्न नहीं कर रहा फ्यूल, तो उसका जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बनेगा, या ब्लैक बॉडी जो उसकी कर्व बनेगी वो काफ़ी नीचे को बनेगी. ठीक है. और उसकी जो पीक वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होगी. एंड द हॉटर द स्टार, द लार्जर द पीक इट वुड हैव, एंड इट वुड शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ. और ये एक्चुअली मैक्स प्लांक ने इस चीज़ को फिर आगे फर्दर एक्सप्लेन किया था कि वी हैव द एनर्जी पैकेट्स, फोटॉन्स, जिसमें उसने क्वांटा का नाम दिया था, एंड दे हैव द स्पेसिफिक एनर्जी रीजन्स, यानी कि एक्सरेज के लिए हायर एनर्जी है, उसके बाद जो अल्ट्रावायलेट और फिर विजिबल और इंफ्रारेड, उनकी उसमें जो फोटॉन्स आते हैं उनकी लो एनर्जी है.
from this spectroscopy, we didn't only even observe the temperature. हमें जब हमने उसका ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, जो कि इस तरह से ड्रॉ हुआ, तो हमें सिर्फ उसके टेम्परेचर का नहीं पता लगा, जो कि इसके पी वेवलेंथ से पता लगता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, बल्कि वी आल्सो ऑब्जर्व दीज एब्जॉर्प्शन लाइंस. और ये जो एब्जॉर्प्शन लाइंस हैं, ये हमें बताती हैं कि उसके एटमॉस्फेयर में या उसके शेल्स में, उस स्टार के शेल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं. ठीक है, तो इससे हमें उसकी कंपोजिशन का जो है वो आइडिया होता है कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और व्हाट अदर एलिमेंट्स आर बीइंग present in the shells of that star. So these are the different absorption and emission lines in different wavelengths absorbed by different elements, in which there is sodium, nitrogen, hydrogen and oxygen. तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा इस वेवलेंथ के अंदर अब्जॉर्प्शन करता है, ग्रीन के अंदर और रेड के अंदर. हीलियम की यहाँ पे नहीं है. हीलियम जो है वो फार लेफ्ट साइड पे, यानी कि वो हाइड्रोजन ब्लू बल्कि पर्पलिश साइड पे जो है ना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है. वाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके शेल से, उसके आउट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. सो इट मीन्स कि हाई एनर्जी फोटोन चाहिए, एंड हाई एनर्जी फोटोन गोज़ टूवर्ड्स दी शॉर्टर वेवलेंथ. अच्छा, there was a scientist, astrophysicist known as Edward Charles Pickering. इसका ये मानना था कि इस स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, तो जब उसने ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व किए, जिसमें सिलिकॉन भी था, कैल्शियम भी था, कार्बन भी था, ईच एलिमेंट दैट वी आल्सो ऑब्जर्व ऑन द अर्थ, तो उसका ये कंक्लूजन था कि अर्थ इज़ मेड अप ऑफ द सेम स्टफ लाइक द स्टार्स. कि स्टार्स का और जो हमारी अर्थ है या प्लैनेट्स हैं, इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो सेम है. एक्चुअली दैट वाज अ रॉन्ग कंसेप्शन. और आफ्टरवर्ड्स उसने फिर अपनी एक टीम बनाई, टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स के और उनको ये काम उनको एक टास्क उसने दिया कि आपने जितने भी स्काई के अंदर स्टार्स ऑब्जर्व होते हैं उनकी आपने स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करना है, और फ्रॉम देयर स्पेक्ट्रल लाइंस, एब्जॉर्प्शन लाइंस, आपने इनको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट करना है, या डिफरेंट क्लासिफिकेशन में आपने उन्हें ऐड अप कर देना है. ठीक है, फ्रॉम दैट. अच्छा, अब जो उसने क्लासिफिकेशन देखी, उसने जितने भी स्टार्स को अराउंड 150,000 उसने स्टार्स जो ऑब्जर्व किए, उसमें उसने इस टाइप के स्पेक्ट्रम्स को ऑब्जर्व किया. दीज आर द बेसिक स्पेक्ट्रल टाइप्स जो कि उसने उन स्टार्स में देखी, और उसी बुनियाद पे उसने उनको क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम ए टू ओ. ए से लेके ओ तक उसने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी कि जितने भी मैंने स्टार्स देखे हैं वो सिर्फ इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर लाई कर रहे थे, और उनको उसने इन क्लासिफिकेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया. लेकिन उसके बाद उसके अंदर फर्दर जो इम्प्रूवमेंट लेके आई, दैट्स एनी जंप कैनन. इसने क्या किया कि फर्दर उसमें हाइड्रोजन और हीलियम लाइंस को ऑब्जर्व किया, और उस क्लासिफिकेशन को और श्रिंक डाउन कर दिया इनटू दीज 7 क्लासिफिकेशन सेक्शंस. देन कम्स द सिसिलिया पेन. सिसिलिया पेन ने काफ़ी स्टडी किया स्पेक्ट्रम को, एंड शी रियलाइज एक्चुअली कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन की एब्जॉर्प्शन हो रही है, इट शोज़ के स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारी अर्थ के ऊपर. हमें अर्थ के ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम उतनी नहीं मिलती. इट मीन्स कि जो स्टार्स की कंपोजिशन है वो प्लैनेट की कंपोजिशन से बहुत डिफरेंट है. स्टार्स हैव मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एज़ कम्पेयर टू planetary system, planets. So she concluded that 90% of the star, 95% of the star, specifically the sun type star, has hydrogen and helium in their composition. और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेस एलिमेंट्स हैं, दोज आर अदर हायर
एलिमेंट्स, ठीक है ना, जिनकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं, जिनको इन एस्ट्रोफिज़िक्स हम हाइड्रोजन और हीलियम के बजाय बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं। तो जिन स्टार्स के अंदर उनकी तादाद ज़्यादा होती है, यानी कि बाकी एलिमेंट्स की एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम, तो हम कहते हैं कि उनकी मेटेलिसिटी ज़्यादा है। सो शी स्टडीड द मेटेलिसिटी ऑफ द स्टार्स फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, और उसने ये कंक्लूड किया कि ऑल दो कि देर आर अदर एलिमेंट्स जिनको हम मेटल्स कहते हैं इन एस्ट्रोफिजिक्स, but the more the abundant amount of hydrogen and helium is present in the atmosphere or in those stars. अच्छा, उसने जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की थी उसमें उसने फर्स्ट जो सबसे हॉटेस्ट स्टार थे जो कि हाइड्रोजन लाइंस में अडॉप्शन कर रहे थे, दोज आर द O टाइप स्टार्स, देन कम्स द B टाइप स्टार्स, देन A, देन F and G, K and M type stars. These are the classifications. O type stars are the hottest stars. ठीक है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है. They are the massive stars and they have the temperature of around 50,000 Kelvin in their atmosphere. जो M type stars हैं, they have the temperature around 2500 to 3000 Kelvin. हमारा जो सन है वो G type star में आता है, G2, and it has टेम्परेचर ऑफ 5500 to 6000 केल्विन, ठीक है। सो उसने इस क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए कि O, B, F, G, K, M, इसको याद करने के लिए उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि एक एनोलॉजी दी थी कि O be a fine गर्ल और गाय किस्मी। तो O, B, A, F, G, K, M, these are the types of stars we observe in the sky. So अच्छा, उसकी भी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन हुई। फर्स्ट वाज द O0 टाइप। अच्छा, O0 टाइप स्टार्स वो होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मैसिव होते हैं, दे हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर। फिर O0 के O1, O2, O3 अप टू O9, देन B0 से स्टार्ट होंगे, B9 तक जाएंगे, देन A0 से स्टार्ट होंगे, A9 तक जाएंगे। सिमिलरली हमारा जो सन लाई करता है, दैट्स द G2 टाइप स्टार। अगर हम टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इट्स नॉट दैट मच कोल्ड, नॉट दैट मच हॉट कि हम उसे O में डालें या हम उसे M में डालें। इट्स अ वेरी नॉर्मल एक स्टार है, एक ना बड़ा है ना छोटा है, एक मीडियम साइज स्टार है, बल्कि हम इन्हें ड्वार्फ में ही लाई करवाते हैं क्योंकि F टाइप स्टार्स आर द मीडियम स्टार्स। लेकिन जो ज़्यादा M ड्वार्फ जो हैं वो तो बहुत ही स्मॉल हैं। लाइक हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट नेबर है एक्सेप्ट सन, दैट्स कॉल्ड प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है उसका टेम्परेचर अराउंड 3000 केल्विन है। इट्स अ वेरी स्मॉल स्टार। उसका जो मास है इट्स अराउंड 0.7 टाइम्स द मास ऑफ सन, ठीक है। और वेरी रिसेंटली वी हैव डिस्कवर्ड प्लैनेट्स अराउंड दो स्टार्स, दैट स्टार, और उसका जो प्लैनेट है वो बहुत करीब है अपने स्टार के, प्रोक्सिमा सेंटोरी के, बट क्योंकि वो स्टार बहुत स्मॉल है, टेम्परेचर बहुत कम है, इट लाइज इन द हैबिटेबल जोन ऑफ दैट स्टार। हमारी जो अर्थ है वो हमारे सन के पॉइंट ऑफ व्यू हैबिटेबल जोन में है। अगर हमारा सन छोटा होता तो मे बी हमारी अर्थ को मरकरी या वीनस की जगह पे होना चाहिए था, ताकि उसे उतनी हीट मिले कि वहाँ पे लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके। अगर बड़ा स्टार होता तो मे बी हम मार्स या फिर जुपिटर के जगह पे होते ताकि हमें ज़्यादा हीट ना मिले फ्रॉम आवर सन। लेकिन हमारे सन का साइज़ इतना है कि वी आर एट द वेरी राइट डिस्टेंस। इन द सेम वे प्रोक्सिमा सेंटोरी जो स्टार है वो एक कूल स्टार है, स्मॉल स्टार है, तो उसके अराउंड जो प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं रिसेंटली वो भी उसी डिस्टेंस पे हैं जहाँ पे राइट टेम्परेचर एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, लाइक अर्थ लाइक लाइफ। सो अच्छा, और जो हमारा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है विच इज़ सीरियस जो है इट इज़ इन द ओ टाइप स्टार, सीरियस और वेगा, ठीक है ना। वेगा जो है ये ए टाइप स्टार में आता है। इट इज़ मैसिव स्टार एज कम्पेयर टू सन, लेकिन दीज आर नॉट द मोस्ट मैसिव स्टार्स। मोस्ट मैसिव स्टार्स आर लाइक 20 to 30 टाइम्स द मास ऑफ सन, जाइंट्स कहलाते हैं ये। सो दिस इज़ द एनोलॉजी। ये एक साइज़ कंपैरिजन है
कि अगर हम M टाइप को कंपेयर करें विद द O टाइप, एंड हेयर इज़ द सन लाइक स्टार्स, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इनसे कंपेयर करें तो हम वाकई ड्वार्फ हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं। हमारा सन आल तो हमें लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है या लार्जेस्ट बॉडी है, लेकिन अगर हम बाकी यूनिवर्स में एग्जैक्टली येलो ड्वार्फ इसको हम कहते हैं। ये जो M टाइप हैं इसको हम रेड ड्वार्फ्स कहते हैं बिकॉज दे एमिट मोर लाइट इन द रेड रीजन। हमने जिस तरह से पीछे बैक इन प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जितना कूल स्टार होता जाता है वो उतना शिफ्ट करता है अपनी पीक वेवलेंथ को टुवर्ड्स दी लॉन्गर वेवलेंथ। और अभी तक का जो हमने मैंने शायद स्लाइड स्किप कर दिया है, जो हमने सबसे स्मॉल स्टार जो ऑब्जर्व किया है, इट एमिट्स मोर लाइट इन इंफ्रारेड, क्योंकि उसकी जो पीक वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड के अंदर लाई कर रही है। सो वी कैन नॉट सी इन द विजिबल रीजन, वी कैन ऑब्जर्व दैट स्टार इन द इंफ्रारेड रीजन। और अभी तक जो साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमर्स ने जो यूनिवर्स का स्टडी किया है, मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर M ड्वार्फ स्टार्स, ठीक है ना। तकरीबन 60 to 70% जो स्टार्स हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज आर M ड्वार्फ स्मॉल स्टार्स, छोटे स्टार्स हैं जो कि रेड वेवलेंथ में ज़्यादा लाइट एमिट कर रहे हैं, रेड या फिर इंफ्रारेड में। सो दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व। और बाकी जो जाइंट्स हैं या जो बड़े स्टार्स हैं, दे आर वेरी स्मॉल अमाउंट एज कम्पेयर टू द M dwarfs। अच्छा, एज आई मैंशनड अर्लियर कि हमारे सन में या अदर स्टार्स में देयर इज़ ए फाइट। क्या फाइट हो रही है कि जो ग्रेविटी है वो मैटर को इनवर्ट पुश कर रही है, लेकिन जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस ग्रेविटी की वजह से वो सारे मटेरियल को आउटवर्ड पुश कर रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इसी इक्विलिब्रियम की वजह से जो हमारा सन है वो एक स्पेसिफिक शेप के अंदर मौजूद हैं। अगर उसकी इस कोर के अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, अगर वो ख़त्म हो जाए, अगर वो होना बंद हो जाए, तो सारा का सारा मैस उसके ऊपर एकदम से गिर जाएगा और जो उसकी जो शेप है वो इस शेप में अपने एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। और अगर फ्यूजन रिएक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो अपने शेप को बड़ा कर देगा, वो अपने साइज़ में बड़ा हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली वुड हैपन टू आवर सन। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स को स्टडी करें, जो कि मेरी अगली स्लाइड्स में आएगा, तो हमारा सन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्यूजन रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है। अभी हाइड्रोजन को बर्न कर रहा है, बट लेटर ऑन व्हेन हाइड्रोजन वुड रन आउट, अल्टीमेटली एक उसकी लिमिट है, ऑल्दो के बहुत ज़्यादा है लेकिन अगेन एक लिमिट है, एंड आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स व्हेन ऑल द हाइड्रोजन वुड बी फ्यूज्ड इनटू द हीलियम, तो उसके कोर में हीलियम होगी। और जब बाहर से प्रेशर बढ़ेगा ग्रेविटी का, तो वो उसको मजबूर करेगा, वो प्रेशर जो है, वो जो टेम्परेचर है वो मजबूर करेगा टू इग्नाइट हीलियम इनटू कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वो जो हीलियम सेंटर ऑफ द कोर ऑफ द सन बनना स्टार्ट होगी, वो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगी एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ बीइंग रिलीज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। और उसकी वजह से उसका जो शेल है, उसका जो साइज़ है, वो बहुत 100 of times ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा हमारे सन का, एंड दैट्स कॉल्ड रेड जाइंट्स। सो दिस इज़ द साइज ऑफ अर्थ एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ आवर ओन सन, ठीक है। और जो हमारा सन है उसका मैस है, इट्स 2 × 10⁻30 kilograms, विच इज़ 1 solar mass, इट्स ओनली 1 solar mass। और एट अ टाइम जो सन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, it's around several thousand tons of hydrogen is being converted into helium per second, जो कि हमारा सन प्रोड्यूस कर रहा है to sustain its shape. Back in time in 19th century, scientists didn't know कि source of energy क्या है, कि ये जो सन या स्टार जो हैं वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बिहाइंड सोर्स क्या है। क्या वो कंबशन की वजह से हो रहा है, जिस तरह से हम आम फायर इग्नाइट करते हैं रोज़मर्रा लाइफ में, क्या उस तरह की फायर इग्नाइट हो रही है एट द सेंटर ऑफ द सन, या वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, या फिर देयर इज़ सम एस्ट्रॉइड्स इम्पैक्ट
कि वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करके वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. सो इट वाज अ कन्फ्यूजन अंटिल ऑफ कोर्स फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने कहा कि एनर्जी can be converted into mass and mass can be converted into energy. They are both interchangeable, and here comes the constant which is speed of light. अब आप माशाल्लाह सारे यहाँ पे पढ़े लिखे होंगे एंड यू कैन डिसाइफर व्हाट डज इट मीन, लेकिन नॉर्मली हमें स्कूल में भी गलत पढ़ाया जाता है. मैं अपनी भी मिसाल दूंगा कि कोई भी मैथ्स तब एनर्जी में कन्वर्ट होगा जब वो स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मूव करेगा. दिस इज़ व्हाट बीइंग टॉट इन आवर स्कूल टाइम, ठीक है ना. हालांकि इट्स टोटली रॉन्ग, बिकॉज आइंस्टाइन ने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी तो उसने ये कहा था कि नथिंग कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेप्ट द लाइट. लाइट के अलावा कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती, तो उसके स्क्वायर के साथ मूव करना तो एक इम्पॉसिबल से भी ज़्यादा बात है. सो द थिंग इज़ के ये जो सी स्क्वायर है ये वही रोल प्ले कर रहा है जो कि ग्रेविटेशनल जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो इक्वेशन है, जो कि न्यूटन्स इक्वेशन है, उसमें जो कैपिटल जी रोल प्ले करता है वो यहाँ पे सी स्क्वायर प्ले कर रहा है. अब कांस्टेंट का रोल, अब वो जो जी है, कैपिटल जी है, वो उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है. दैट्स वाई द ग्रेविटेशनल इफेक्ट इज़ वेरी स्मॉल. लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मास अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज्ड बिकॉज सी हैज़ अ वेरी लार्ज value. And this is the reaction that is being happening in this at the center of every normal star. अब normal star का क्या मतलब है? अब normal और abnormal, there are two types of stars. जो हमारे स्काई में हाइड्रोजन और हीलियम को बर्न कर रहे हैं, that's called normal stars. जो हाइड्रोजन और हीलियम कंज्यूम कर चुके हैं, हाइड्रोजन को कंज्यूम कर चुके हैं, and now they are fusing higher elements, ठीक है ना, that's they now become another category of the stars, ठीक है ना, वो एक नई स्टेज में चले जाते हैं और वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टार्स, ठीक है ना. उनका जो बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट है. मैं उसको भी कवर करूँगा. लेकिन नॉर्मली क्या हो रहा है स्टार्स में कि हाइड्रोजन जो है वो क्योंकि प्लाज्मा है, प्लाज्मा मीन्स आयंस हैं, आयंस एक दूसरे के करीब आते हैं, जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो और ज़्यादा करीब आते हैं अनटिल दे टच ईच अदर, और जब वो टच करते हैं दे फ्यूज टुगेदर एंड बिकम द हायर पार्ट एटम, यानी कि हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का पार्टिकल बना देते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिनो पार्टिकल, ठीक है. एक न्यूट्रिनो भी पैदा होता है और रेडिएशंस रिलीज होती हैं. सो दिस इज़ इट. यहाँ पे जब ये दोनों मिले हैं, एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, वन इज स्टिल द प्रोटॉन, और यहाँ पे एक न्यूट्रिनो बाहर निकला है. देयर इज ए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंड द रेडिएशंस. अच्छा, सन फ्यूजेस 700 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू 696 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम एवरी सेकेंड. अब अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है हमारा सन एवरी सेकेंड, तो अगर ये जो डिफरेंस इन मैस आया है विच इज़ अराउंड 4 मिलियन टन्स, उस 4 मिलियन टन्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें विद द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो वैल्यू है, देन वी वुड अल्टीमेटली नो द एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ आवर सन एवरी सेकेंड, ठीक है, विच इज़ वेरी लार्ज. ओके, नाउ वी वांट टू नो कि बाकी जो स्टार्स हैं उनका क्या टेम्परेचर है, उनकी कितनी ल्यूमिनोसिटी है, वो कितने बड़े हैं. फॉर दैट पर्पज़ वी नीड टू नो द डिस्टेंस टू दो स्टार्स. अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 बल्ब हैं, ठीक है ना. अगर दोनों एक ही डिस्टेंस पे हैं, अगर एक बड़ा बल्ब है आई वुड नो कि अच्छा ये अपने साइज़ की वजह से ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है. अगर मैं बड़े बल्ब को ज़्यादा डिस्टेंस पे ले जाता हूँ एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल बल्ब, और उन दोनों की ब्राइटनेस एक जितनी हो जाती है, तो हाउ वुड आई डिसाइफर कि ये बड़ा है या ये छोटा है? डिस्टेंस से. तो हमें पहले डिस्टेंस निकालना ज़रूरी होता है टू स्टडी द स्टार, और वो एक अलग मेथड है. आई वुड कवर इन अदर लेक्चर कि हम किस तरह से डिस्टेंसेस निकालते हैं इन आवर गैलेक्सी देन इन अदर गैलेक्सीज, ठीक है. और जब हमें डिस्टेंस फाइंड हो जाता है तो हमारे पास एक
रिलेशन है ल्यूमिनोसिटी का विद द टेम्परेचर एंड द डिस्टेंस विद दैट स्टार, ठीक है ना। सो फ्रॉम दैट हमें एक टेम्परेचर कहाँ से मिला? एनीवन? हाउ कैन वी डिसाइफर द टेम्परेचर? एग्जैक्टली फ्रॉम द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो उसकी जो पीक वेवलेंथ है उससे हम क्या निकाल रहे हैं? टेम्परेचर फ्रॉम द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वहाँ से उस टेम्परेचर को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, डिस्टेंस हमें मालूम पड़ गया, वी नो द ल्यूमिनोसिटी। एंड व्हाट डज ल्यूमिनोसिटी टेल अस? ल्यूमिनोसिटी में बता रही है कि अगर हम उस स्टार के बिल्कुल पास हों और हम उसका एक सरफेस एरिया, इंक्लोज सरफेस एरिया, वो कितनी लाइट वो कर रहा है, एमिट कर रहा है। हम तो सिर्फ एक सेक्शन देख रहे हैं ना उस स्टार का फ्रॉम दिस डिस्टेंस, बाकी जो वो लाइट एमिट कर रहा है वी डोंट नो। लेकिन अगर हम ल्यूमिनोसिटी निकालने में कामयाब हो जाते हैं देन वी नो कि वो फ्रॉम ऑल सरफेसेस कितनी लाइट एमिट कर रहा है, और वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। दैट्स द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट स्टार, लाइक मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टार। तो जैसे हमें मास बताता है कि अच्छा इसके अंदर कितना मटेरियल है ओवरऑल, तो जो ल्यूमिनोसिटी हमें ये बताती है कि वो ओवरऑल कितनी लाइट एमिट कर रहा है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टार। टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। वो वाइस वर्सा है। अगर हम टेम्परेचर पता है तो हम ल्यूमिनोसिटी निकाल सकते हैं, अगर ल्यूमिनोसिटी पता है तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। आर जो है ना, इट्स द रेडियस। अगर तो हमें डिस्टेंस नहीं पता देन दैट्स द डिस्टेंस टू द स्टार, क्योंकि हम एक कंप्लीट स्फेयर काउंट कर रहे हैं कि उसमें वो टोटल स्फेयर में कितना फ्लक्स रिलीज कर रहा है। मिसाल के तौर पे दिस इज़ द स्टार, यहाँ पे स्टार है, ठीक है ना, और हम यहाँ पे हैं, तो हमें उसका स्पेसिफिक फ्लक्स मिल रहा है, ठीक है ना, ये फ्लक्स मिल रहा है उसका, ठीक है ना। तो हम उसे पूरा सरफेस एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द होल रीजन, वो कितनी लाइट एमिट कर रहा है। और क्योंकि हमें उसका डिस्टेंस पता है तो हम वहाँ से डिसाइफर कर सकते हैं कि फ्रॉम द सरफेस वो कितनी लाइट एमिट कर रहा होगा। And then comes the very famous scientist from India, Indian astrophysicist. His name is Magnard Saha. Saha equation आपने पढ़ी होंगी, बोल्ट्जमैन साहा इक्वेशन, साहा बोल्ट्जमैन भी कहते हैं, बोल्ट्जमैन साहा भी कहते हैं। इट्स अ वेरी फेमस इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन क्या बता रही है कि दिस इज द Ni इज द नंबर डेंसिटी ऑफ आइंस एंड Nn इज द नंबर डेंसिटी ऑफ न्यूट्रल एटम्स। इससे हमें ये पता लगता है कि कितने पार्टिकल्स इन दैट स्टार आर बीइंग यूज्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना। क्योंकि ये रेशो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये रेशो किस पे डिपेंड कर रही है? उसके टेम्परेचर पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इट मीन्स के नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा हैं वहाँ पे, और जितने नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा हैं दे हैव मोर कैपेसिटी टू कोलाइड, टू कम क्लोज टू ईच अदर। और इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ज़्यादा फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। प्लाज्मा का लेवल बता रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली प्लाज्मा कितना मौजूद है, न्यूट्रल है या फिर बहुत बिल्कुल। जीरो होगा तो न्यूट्रल। अच्छा, अब हमने इंडिविजुअली स्टार्स को देख लिया, लेकिन अगर हम एक एक स्टार को स्टडी करना शुरू कर दो तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब सालों लग जाएंगे, क्योंकि एक स्टार को स्टडी करने में हमें इतना टाइम लगता है। सो व्हाट वी डिड, यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया कि स्टार्स हमेशा जब पैदा होते हैं किसी भी नेबुला के अंदर तो वो झुरमट में पैदा होते हैं, ठीक है ना, वो एक क्लस्टर में पैदा होते हैं, स्टार क्लस्टर्स में, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पूरे स्टार क्लस्टर को स्टडी कर लिया और उस स्टार क्लस्टर में हमने ल्यूमिनोसिटी फाइंड कर ली। वी नो द डिस्टेंस टू द क्लस्टर, नाउ वी नो temperature from the black body radiation, and now we can determine the luminosity. अब हमारे पास ल्यूमिनोसिटी भी आ गई, हमारे पास उनका टेम्परेचर भी आ गया। हम उन्हें अब क्या करना शुरू कर दिया, हमने उसे क्लासीफाई शुरू करना कि जो ज़्यादा, जिनका ज़्यादा टेम्परेचर है उनकी ल्यूमिनोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो हमने उनको अलहदा से सेपरेट आउट करना शुरू कर दिया, उनके लिए अलग, और जो कूलर हैं, जो स्मॉल इन साइज़ हैं, वो राइट साइड ऑफ द ग्राफ आना शुरू हो गए। एंड लेटर ऑन जैसे जैसे हमारी ये बढ़ता गया सैंपल, ठीक है ना, तो हमने एक ट्रेंड देखा। व्हाट्स द ट्रेंड? वो हमें ये ट्रेंड बता रहा है कि देयर इज़ ए स्पेसिफिक लाइन, ये एक लाइन है जिसको फॉलो कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टार्स,
एंड दैट लाइन इज नोन एज मेन सीक्वेंस स्टार। ठीक है ना, मेन सीक्वेंस स्टार मैंने अभी आपको बताया था नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, दीज आर द नॉर्मल स्टार्स। These stars are actually consuming hydrogen. They are burning hydrogen in their cores and producing helium. ये जो स्टार, these are actually not stars, these are the remnant of stars. These are called white dwarf. इनके टेम्परेचर तो ज़्यादा हैं लेकिन इनकी ल्यूमिनोसिटी कम है। इट मीन्स कि इनका साइज़ कम है, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर द ल्यूमिनोसिटी इक्वेशन, तो R इज़ द साइज ऑफ द स्टार। तो जिनका साइज़ कम है, ऑल्दो उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, उनकी ल्यूमिनोसिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी। सो वी हैव द रिलेशन कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा लेकिन उनका साइज़ कम होगा। यहाँ पे जो होंगे उनका टेम्परेचर भी कम है, उनका साइज़ भी कम है। इस जगह पे जो आएंगे दे हैव द लार्जर साइज बट दे हैव लो टेम्परेचर। अब क्यों लो टेम्परेचर है? एक्सपेंड कर गए, एक्सपैंड कर रही हैं लाइक द रेड जाइंट्स। जब रेड जाइंट्स में अब आपने एक बहुत कॉम्पैक्ट जगह पे हॉट एयर को रखा है, जैसे आप उसे एक्सपैंड करेंगे वो कूल हो जाएगी, और यही इन स्टार्स के साथ हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट दीज स्टार्स? यहाँ पे जो स्टार्स हैं ये ब्लू सुपर जाइंट्स हैं, ये एक्सपैंड तो कर रहे हैं, ये अपनी लिमिट तक भी पहुँच गए हैं, लेकिन अंदर रिएक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि दीज आर द मोस्ट मैसिव स्टार्स। तो रिएक्शन इतना ज़्यादा था कि टेम्परेचर फिर भी नहीं कम हो रहा। अगर ये एक्सपैंड ना करें इनटू देयर लार्जर साइज, तो ये शायद इस जगह को भी क्रॉस कर जाएं। तो ये अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंच गए हैं, लेकिन इवन देन देयर टेम्परेचर इज मच हायर देन दीज स्टार्स, दीज सुपर जायंट्स। एक्चुअली जब मेन सीक्वेंस, अब अगर मैं एग्जांपल दूंगा फ्रॉम आवर सन की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इट्स आवर ऑन स्टार। ठीक है ना, हम इसके बारे में काफ़ी स्टडी किया है, वी नो मच बेटर। तो हमारा सन अभी यहाँ पे है, दिस इज़ द G टाइप स्टार्स, यहाँ पे K टाइप स्टार्स हैं, यहाँ पे M टाइप स्टार्स हैं, यहाँ पे A टाइप स्टार्स हैं, यहाँ पे B टाइप स्टार्स हैं, और यहाँ पे O टाइप स्टार्स हैं। जो हमारा सन है, आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल इट्स हाइड्रोजन इन 5 बिलियन ईयर्स, नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स, 5 बिलियन साल, 5 अरब साल हमारा सन गुजार चुका है लाइफ स्पैन का, और बाकी 5 अरब साल रहते हैं। टोटल हमारे सन की लाइफ स्पैन है 10 बिलियन ईयर्स। एंड आफ्टर कंज्यूमिंग होल हाइड्रोजन इट वुड कम टू दिस एरिया। ठीक है ना, अब इस एरिया में क्या हो रहा है? इस एरिया में ये हो रहा है कि वो अपना साइज बढ़ा रहा है। जब साइज बढ़ा रहा है, उसकी ल्यूमिनोसिटी तो उतनी ही है जितनी अब है, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया है। सो इट कम्स टू दिस कैटेगरी। जब वो अपनी हीलियम को भी कंज्यूम कर चुका होगा, जब हीलियम भी उसकी कंज्यूम हो जाएगी, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन इट वुड शिफ्ट टूवर्ड्स दिस पोर्शन। अब ये लाइन यहाँ से होती हुई यहाँ पे आ जाती है। सो वो अपना सारा का सारा जो मटेरियल है जो उसने शेल्स के अंदर प्रोड्यूस किया है वो फेड आउट कर देगा, और ख़ुद एक छोटा सा सेंटर में कोर रह जाएगी, डेट्स कॉल्ड वाइट ड्वार्फ। दैट्स द एंडिंग पीरियड ऑफ आवर सन। ये एक अलग कंप्लीट टॉपिक है कि किस तरह से चंद्रशेखर लिमिट भी उसमें आ जाती है। फिर वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि डीजेनरेसी प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे एक अलग फिज़िक्स जो है वो एक जन्म लेती है, जो कि एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है। सो द थिंग इज़ कि हमारे सन का जो पाथ है वो कुछ इस तरह से होगा। सो दिस ग्राफ इज शोइंग कि हर जो स्टार है वो इस पाथ को नहीं फॉलो करेगा, या अगर यहाँ पे स्टार है तो ये नहीं कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ से होकर यहाँ पे आएगा, या अगर यहाँ पे स्टार है तो वो यहाँ से नीचे आएगा फिर। नो, ईच स्टार हैज़ इट्स ओन पाथ, उसकी अपनी डेस्टिनी है। जो यहाँ पे स्टार होंगे वो यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे, और यहाँ पे मूव करने के बाद, अच्छा ये जो स्टार्स है ना, ये सबसे मैसिव स्टार्स हैं। दीज आर अराउंड 50 to 60 सोलर मैसिस। ठीक है ना, तो जब ये सबसे शॉर्ट लिविंग स्टार्स होते हैं। जिस स्टार का जितना ज़्यादा मैस होता है उतनी उसकी एज कम होती है। क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, फ्यूजन तेज़ है, फ्यूजन रिएक्शन तेज़ है, तो जितना भी मटेरियल है वो बहुत जल्दी कंज्यूम कर रहा है।
जब हाइड्रोजन जल्दी कंज्यूम होगी हीलियम की तरफ जाएगा, हीलियम जल्दी कंज्यूम हुई कार्बन की तरफ जाएगा, अल्टीमेटली वो हायर एलिमेंट्स। और जब सारे एक लिमिट आती है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ, उस लिमिट पे आके उसके पास एनर्जी प्रोडक्शन सोर्स ख़त्म हो जाता है। लेकिन ग्रेविटी तो है, जब ग्रेविटी उसके ऊपर एग्जर्ट होती है, इट कैन नॉट विथस्टैंड एनी ग्रेविटी, तो वो एक बहुत बड़ा धमाका करता है, देन बिकम्स अ ब्लैक होल। तो ये जो स्टार्स हैं दे मेक ब्लैक होल्स आफ्टर देयर डेथ, ठीक है ना। और उस सुपरनोवा हाइपरनोवा एक्चुअली जो रिएक्शन होता है, हाइपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, उसके रिजल्ट में ब्लैक होल्स बनते हैं। दीज आर द रेड सुपर जाइंट्स। रेड सुपर जाइंट्स के दोनों हो सकते हैं डेस्टिनीज, आइदर दे कैन बिकम ब्लैक होल और दे कैन आल्सो बिकम न्यूट्रॉन स्टार। अगर तो मैस लिमिट है 8 सोलर मैसेज टू 20 सोलर मैसेज, तो फिर तो वो बनाएगा न्यूट्रॉन स्टार। अगर उसका मैस 20 सोलर मैसेज से ज़्यादा है, देन इट वुड बिकम अ ब्लैक होल। और जो हमारे सन टाइप स्टार्स हैं, या सन टाइप स्टार से लेके 8 सोलर मैसेज के रेंज में आ रहे हैं, दे वुड ओनली बिकम वाइट ड्वार्फ। उनकी जो एंडिंग स्टेज है वो वाइट ड्वार्फ है, दे वॉन्ट बिकम न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। सो दिस इज़ अगेन वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि जितना मैसिव स्टार होगा उसकी कोर उतनी बड़ी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है, वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है हाइड्रोजन को, या जो भी उसके कोर में फ्यूल मौजूद है। या दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वेरी स्मॉल स्टार, जो मैंने अभी कुछ स्लाइड्स पहले बताया कि दिस इज़ द कूलेस्ट स्टार ऑब्जर्व्ड टिल डेट। और इसका जो मैस है वो अराउंड 0.7 टाइम्स द मैस ऑफ सन है, ठीक है। और ये इंफ्रारेड में अपनी लाइट, ये जो ऑब्जर्व किया गया, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर इसकी लाइट ऑब्जर्व की गई है। विजिबल रीजन के अंदर यू कैन नॉट ऑब्जर्व दिस स्टार। So these are the regions where all the stars being born and dying. अच्छा, जो अभी तक का सबसे मैसिव स्टार ऑब्जर्व किया गया है, जो कि इसी रीजन में ऑब्जर्व किया गया है, दैट्स कॉल्ड R136A1। इसको नाम दिया गया है। और अगर हम उसको कंपेयर करें विद आवर सन, तो हमारे सन का ये साइज़ है, एंड यू कैन जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ दैट स्टार। और इसका जो मैस है डेट्स अराउंड 350 सोलर मैसेज एक्सीड कर रहा है। सो अभी तक इस स्टार को ऑब्जर्व करने से पहले या डिटेक्ट करने से पहले हमारी ये अजम्पशन थी, या हमारी जो फिज़िक्स जो हमने अभी तक स्टडी की थी, या जो हमने ऑब्जर्व किया था, कि जब एक स्टार फॉर्म बन रहा होता है, तो वो अपने ऊपर क्योंकि मटेरियल को एक्रीट कर रहा होता है, तो जो मटेरियल एक्रीट कर रहा है वो जीन्स क्राइटेरियन के मुताबिक एक लिमिट आनी चाहिए कि उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। जैसे फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, अब वो एक्स्ट्रा मटेरियल को नहीं गिरने देगा, उसको वो दूर करता रहेगा। तो उसके मुताबिक जो हमने हायर लिमिट निकाली थी किसी भी स्टार के मैस की, डेट वाज अराउंड 150 सोलर मैसेज, लेकिन दैट्स वे टू मच हायर। इसका मतलब ये है कि ये जहाँ पे बना है वहाँ पे इतना ज़्यादा मटेरियल है कि जब शुरू में उसने लाइट एमिट करना शुरू की, जब उसने फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट किया, तो वो लाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, या वो प्रेशर वो या हीट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो उसके जो एक्रीट हो रहा है मटेरियल उसको रोक सके। एंड इट कॉन्टिन्यूड एक्रीटिंग अनटिल के उसने इतना बड़ा मैस अपना बना लिया। एंड इसकी जो लाइफ स्पैन है इट्स अराउंड 10 to 50 मिलियन ईयर्स, दैट्स इट। उसके बाद ये हाइपरनोवा ब्लास्ट करेगा, एंड दैट्स द मोस्ट एक्सट्रीम एक्सप्लोजन आफ्टर बिग बैंग। और दिस इज़ द एवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ द स्टार्स। सब जो हैं वो प्रोटो स्टार्स होते हैं शुरू में, लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड, लेकिन जो स्मॉल स्टार्स होते हैं वो प्लानिटरी नेबुला के अंदर कन्वर्ट होते हैं आफ्टर बिकमिंग रेड जाइंट। ये कुछ हैं स्टार्स जो कि रेड सुपर जाइंट्स और ब्लू सुपर जाइंट्स बनती हैं, दे बिकम द न्यूट्रॉन स्टार्स आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन। लेकिन जो बहुत मैसिव होते हैं दे बिकम द ब्लैक होल, ठीक है। अब इनकी फुल फिज़िक्स है, एक पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि स्टडी होता है इन दी स्टेलर एस्ट्रोफिज़िक्स, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो रेड जाइंट स्टार्स में क्या होता है कि जब हीलियम बर्न हो जाती है, दैट्स द रेड जाइंट स्टार। रेड जाइंट स्टार कब होता है? हमारा जब सन
हाइड्रोजन सारी कंज्यूम कर लेगा, उसके कोर में हीलियम होगी और हीलियम भी वो सारी की सारी कंज्यूम कर चुका होगा, तो उसके कोर में क्या बनेगी? हीलियम क्या बना रहा है? कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो द कोर इज फिल्ड अप विद कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब द पॉइंट इज कि नेक्स्ट इग्निशन कब होगी? क्या ये अपर एलिमेंट्स की तरफ जाएगा, हायर एलिमेंट्स की तरफ जाएगा? क्वेश्चन इज टेम्परेचर बढ़ना चाहिए उसके लिए ना, एग्जैक्टली। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ग्रेविटी कब ज़्यादा होगी? जब मैस ज़्यादा होगा। तो हमारे सन का मैस इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इन हायर एलिमेंट्स को फ्यूज़ कर सके। तो इस केस सेंटर में ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एटम्स हैं, जो कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके क्योंकि ये प्लाज्मा फॉर्म में है, तो देयर आर न्यूक्लियाई और उनके आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत करीब आ जाते हैं टू देयर न्यूक्लियाई, दैट्स कॉल्ड डीजेनरेसी प्रेशर। और उससे ज़्यादा प्रेशर वो एग्जर्ट नहीं कर सकता या ग्रेविटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो जितनी भी एनर्जी होती है वो एग्जर्ट करके बाहर वाले शेल्स को बाहर की तरफ पुश कर देता है, और जो दरमियान में सिर्फ रेमिनेंट उसका रह जाता है, दैट्स कॉल्ड वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ जो है उसके अंदर वही एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी की वजह से प्रोड्यूस हुई होती है। इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी क्या है? हाइड्रोजन एटम आपने पढ़ा। हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है कि एक प्रोटॉन एंड देयर इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है जो कि नील बोहर ने हमें बताया कि दैट्स द रेडियस, ठीक है। उससे ना करीब आएगा, करीब नहीं आ सकता, दूर जाएगा तो वो बाहर वाले शेल्स में जाएगा। और हमने पढ़ा है कि जब बाहर वाले शेल्स में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जब वो डी एक्साइट होता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक रीजन जिसमें वो उसने मूव करना है अपने प्रोटॉन के अराउंड, अगर वो उससे भी करीब आ जाता है, व्हाट डज इट मीन? कि उसमें जितनी भी बची कुची एनर्जी थी उसने वो भी रिलीज़ कर दी है, और वो उसी एनर्जी की बुनियाद पे फिर वो अपनी बाकी लाइफ स्पैन गुजारता है, दैट्स कॉल्ड वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ के अंदर जितनी भी लाइट एमिट हो रही होती है, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट डीजेनरेसी प्रेशर, और वो फिर ओवर नेक्स्ट 1 ट्रिलियन ईयर्स इसी तरह से एग्जर्ट, और उसके बाद वो फिर ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा जब वो एनर्जी भी इसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम मैसिव स्टार्स की बात करें, लाइक 8 टाइम्स द मैस ऑफ सन या 20 टाइम्स मैस ऑफ सन, तो उनकी जो डेथ होती है या उनका जो एंडिंग पीरियड होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। दे डू नॉट स्टॉप एट कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब कार्बन, नाइट्रोजन उनके सेंटर में बनती है, अगेन प्रेशर इज एक्सर्टेड ड्यू टू ग्रेविटी। जब ग्रेविटी प्रेशर एक्सर्ट करती है, ज़्यादा उनको पुश करती है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं इनटू द मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड हायर एलिमेंट्स। वो एक नई लेयर, नए एलिमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं इनटू द कोर। फिर क्या, ये शेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो सबसे लाइटर एलिमेंट है वो बाहर वाली शेल में होगा, उससे हैवियर उसके अंदर वाली शेल में होगा, उससे हैवियर उससे अंदर वाली शेल में। अब जो सेंटर ऑफ द स्टार है, यहाँ पे तो बिलियंस ऑफ केल्विन टेम्परेचर है, जो कि सबसे हायर एलिमेंट्स को इग्नाइट करने के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन इन शेल्स के अंदर भी इतना टेम्परेचर है कि वो इनको भी फ्यूज़ कर रहा है। तो इस स्टेज पे आके जब वो रेड सुपरजायंट या ब्लू सुपरजायंट बनता है, इवन दीज लेयर्स आर आल्सो फ्यूजिंग। जो दो लेयर्स के दरमियान का रीजन होता है, यहाँ पे भी फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। सो द फ्यूजन रिएक्शन इज नॉट ओनली एट द सेंटर बट आल्सो इन दीज रीजन्स। और जब हायर एलिमेंट्स की तरफ जा रहे हैं अनटिल आयरन, जब आयरन फ्यूज होना शुरू होती है एट द सेंटर ऑफ द स्टार, तो आयरन बिहेव्स डिफरेंटली। जब भी अभी तक फ्यूजन रिएक्शन होने की वजह से जो नेक्स्ट एलिमेंट बना था, लाइक हाइड्रोजन इनटू हीलियम, हीलियम इनटू कार्बन, तो उनके प्रोडक्शन के साथ एनर्जी रिलीज हुई थी। वो जो मैस डिफरेंस था उसने एनर्जी को रिलीज किया था। यहाँ पे मैस डिफरेंस नहीं होता। जब आयरन बनता है तो मैस डिफरेंस नहीं होता, बल्कि मैस एक्स्ट्रा चाहिए होता है उसे। तो वो जो एनर्जी वहाँ पे पहले से प्रोड्यूस होती है वो उसको भी कंज्यूम करना शुरू कर देता है। इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वहाँ पे वो रुक जाता है, क्योंकि स्टार जो है उसको तो एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी नहीं मिली, व्हाई वुड इट फ्यूज? तो बाहर से जो शेल्स हैं वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दैट्स कॉल्ड शॉक वेव्स। एक शॉक वेव आया, उसने रिपेल किया, फिर दूसरा शॉक वेव आया, और हर अगला शॉक वेव पिछले से ज़्यादा एनर्जी एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक लिमिट आ जाती है। अगर तो मैस है 8 से लेकर 20 तक, तो वो इतना शॉक वेव एक्सर्ट करेगा कि जो सेंटर में कोर के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं,
जो कि इन दी केस ऑफ वाइट डॉर्फ न्यूक्लियाई क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स और करीब आ गए, उससे ज़्यादा करीब नहीं आ सकते थे, डेट्स इट। वहाँ पे उन्होंने डीजनरेसी प्रेशर एक्सर्ट किया और वाइट डॉर्फ बन गए। लेकिन इन केस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो मजबूर होते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को उस न्यूट्रॉन उस प्रोटॉन के अंदर जाना पड़ जाता है। इट बिकम्स द पार्ट ऑफ दैट प्रोटॉन एंड बिकम्स द न्यूट्रॉन, एंड दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। और डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि होल सन, पूरा जो सन है वो एक सिटी के जितना हो जाता है, अ साइज ऑफ अ सिटी। और अगर हम डेंसिटी अब मैथ की बात करें तो इफ़ यू टेक 1 स्पून ऑफ दैट न्यूट्रॉन स्टार it would be equal to Mount Everest or K2. That's the mass we are talking about, that's the density we are talking about. लेकिन exactly, लेकिन अगर और मैसिव स्टार है तो even the neutrons cannot withstand the gravity, और वो जिस स्पेस टाइम के अंदर मौजूद है वो कोर, वो स्पेस टाइम जो है उसके अंदर होल पैदा हो जाता है, and that becomes the black hole, and we don't know where that mass go. हमें नहीं पता वो कोर कहाँ पे गई, क्योंकि एक टनल बन जाती है जहाँ पे वो मूव कर जाता है इवेंट होराइजन जी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो वायलेट नहीं हो जाता जब न्यूट्रॉन स्टार एक ब्लैक होल बन जाता है और फिर वाइट डॉर्फ भी कुछ और। वायलेट तो पूरी फिजिक्स होती है। एक्चुअली ब्लैक होल के बारे में कहा यही जाता है कि वहाँ पे जो हमारे नॉन लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो ओबे नहीं करते। जैसे आप इवेंट होराइजन क्रॉस करते हो, लाइट डजंट एग्जिस्ट, और सॉरी टाइम डजंट एग्जिस्ट। नहीं, फिर और दूसरा आपका जो लाइट है इट डजंट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एग्जैक्टली, इवन स्ट्रेट लाइन तो एक अलग बात है। इफ़ यू आर इन अ ब्लैक होल एंड देयर इज़ अ लाइट कमिंग टुवर्ड्स यू, यू कैन प्ले विद द लाइट। आप उस लाइट को यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। जी। सो दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोफिजिक्स के जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये बिग बैंग के दौरान प्रोड्यूस हुई। अदर आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइंग स्टार्स। सोलर टाइप स्टार्स वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे, जो मैसिव स्टार्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे। सो आई यूज़ टू थिंक ऑफ इट कि जो जितने भी हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं, 92 एलिमेंट्स जो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, अर्थ पे कहाँ से आए? वेयर डिड इट फॉर्म? हम कहते हैं जी ज़मीन पे हैं, ज़मीन में कहाँ से आए? ज़मीन जब बनी थी तो तब वो मटेरियल कहाँ से आया? सो ऑल दैट वाज कुक्ड एट द वेरी कोर ऑफ द स्टार्स, सुपरनोवा स्टार। और इवन जो हमारे अंदर सारे एलिमेंट्स हैं लाइक द कैल्शियम, द आयरन, मैग्नीशियम, जितने भी कार्बन, ऑक्सीजन, दीज आर ट्रेसेबल टू द ending stage of the dying star supernova. These are manufactured in the very core of those stars, and that's why we are connected with the cosmos. We are made of the same stuff that is being cooked at the very center of those stars. So this is something that actually drives me to study the universe more, because अगर हम ना स्टडी करते तो we didn't know कि हमारा कनेक्शन क्या है इसके साथ। और ना सिर्फ फिलोसॉफिकल कनेक्शन, बल्कि राइट नाउ वी आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल साइंसेज एज वेल। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि हम उस टेक्नोलॉजी को बायोमेडिकली किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। सर जो मतलब हमारा जो सन था वो एक नेबुला से बना ना, तो वो नेबुला से, हाँ ऑफ कोर्स नेबुला के अंदर एक बना, तो वो नेबुला जो है किसी पुराने स्टार के फटने से, एग्जैक्टली, लेकिन सिर्फ स्टार के फटने से सारे एलिमेंट्स नहीं बनते, इसके लिए हमें न्यूट्रॉन स्टार की मर्जिंग भी चाहिए। तो ये है कि जो हमारा नेबुला था पुराना, एक स्टार फटा लेकिन साथ साथ उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन स्टार भी मर्ज हुए। एक्सीलेंट क्वेश्चन। और फिर वो जो नेबुला था उसमें से सन निकला। बिल्कुल, इसी पार्ट में मैं बिल्कुल आने वाला था कि आयरन तक तो बन गया, नाउ व्हाट। लेकिन जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है ना, तो तब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन 1 सेकेंड, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि जितने भी एलिमेंट्स तब वहाँ पे मौजूद होते हैं उस एनर्जी से फ्यूज़ कर जाते हैं। नहीं, इसमें लिखा है कि ना एक्सप्लोडिंग मैसिव स्टार्स ना येलो है, सिर्फ येलो बनते हैं एक्सप्लोडिंग मैसिव स्टार्स। सारे जो पर्पल हैं इसमें वो सारे हैं जो कि हम देखते हैं अर्थ पे, जिस तरह गोल्ड भी है, AU जो है वो गोल्ड है, मरकरी है, बिस्मथ है, यूरेनियम है, ये सारे पर्पल है ना।
तो ये मर्जिंग न्यूट्रॉन स्टार से बने हैं, तो वो भी फिर हुई है हमारे हिस्ट्री में। वो उसकी तरफ मैं आता हूँ कि वी आर टाइप 1 स्टार, बल्कि टाइप 3 स्टार्स हैं, सॉरी टाइप 1 कह रहा हूँ, टाइप 3 स्टार्स हैं। सो थर्ड जनरेशन ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स थे वो सबसे मैसिव थे, वो जब एक्सप्लोड हुए उन्होंने सेकंड जनरेशन ऑफ स्टार्स बनाए। तो मे बी ये जो मैसिव एलिमेंट्स थे उस वक्त न्यूट्रॉन स्टार्स कोलिजन हुई हो, जिसकी रिजल्ट में जो मटेरियल बना उससे सेकंड जनरेशन ऑफ स्टार्स बने। तो उन सेकंड जनरेशन ऑफ स्टार्स में ऑलरेडी वो मौजूद थे एलिमेंट्स, उन्होंने खुद भी फ्यूज़ किए और ऑलरेडी भी मौजूद थे ड्यू टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स। और जब उसने सुपरनोवा एक्सप्लोजन किया देन वो जो ऑलरेडी प्रोड्यूस थे, जो कि एक्चुअली न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन की वजह से होना चाहिए था, इट आल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बड़ी बात है, बड़े लकी हैं कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और ये बड़ी अजीब बात है ये। इसके लिए बड़े एक्सीडेंट्स चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि एक पुराना स्टार फट जाए, बल्कि न्यूट्रॉन स्टार की मर्जिंग की भी ज़रूरत है इसके लिए। दैट्स व्हाई व्हेन वी आर लुकिंग फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट इन द यूनिवर्स, तो बहुत सारी कंडीशंस हमें देखनी पड़ती हैं। लाइक इन द लास्ट लेक्चर आई सेड कि हमें गैलेक्टिक हैबिटेबिलिटी को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है, कि हम उस रीजन में तो नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट या फिर एक्सरे एमिशंस हो रही हों बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो रीजन चाहिए जहाँ पे स्टार फॉर्मेशन भी हुई हो, लेकिन वो चाहिए जहाँ पे अब ना हो रही हो। क्योंकि अगर रिसेंट स्टार फॉर्मेशन हो रही है या मैसिव स्टार्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो एक्सप्लोड करेंगे, हमारी तो लाइफ ख़त्म, ठीक है ना। सो द नियरेस्ट स्टार दैट विल गो सुपरनोवा इट इज़ बीटलजूस, और बीटलजूस जो है वो हमसे 4 से 600 लाइट ईयर्स के फासले पे है, और रेड सुपर जाइंट है। अगर वो सुपरनोवा एक्सप्लोड करता है तो वी आर एट अ वेरी सेफ डिस्टेंस। अगर कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है इन द 100 लाइट ईयर्स, तो उसकी जो रेडिएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि वो हमारे सोलर मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी पास करके, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी क्रॉस करते हुए हमारी एटमॉस्फेयर में आ सकती है, इंटरवीन कर सकती है। लेकिन वी आर वेरी लकी इनफ कि हमारी सराउंडिंग में इन 100 लाइट ईयर देयर इज़ नो मैसिव स्टार दैट वुड गो सुपरनोवा। So we are very, very lucky. So in one sense, we are connected with the cosmos because we have the same elements in our body which are traceable to the stars. ठीक है ना? So we are common. लेकिन at the same time, we are very lucky and we are very unique because still now we haven't found any Earth-like planet with the same conditions, with the same habitability like we observe on our Earth. लिखा है एक्सप्लोडिंग वाइट डॉर्फ, तो वाइट डॉर्फ्स एक्सप्लोड भी करते हैं? एक्सप्लोडिंग वाइट डॉर्फ्स अभी ये ऑब्जर्व नहीं किया हमने, लेकिन लास्ट स्टेज होती है, लेकिन ये अभी तक थ्योरी है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इन सब के दौरान नहीं बने हैं एंड दे आर प्रेडिक्टेड, क्योंकि एक द थिंग इज़ के स्टार का लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा है जो कि वाइट डॉर्फ बनते हैं कि उसने अपनी पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ वाइट डॉर्फ ही बनाए हैं अभी तक। वी डोंट इवन ऑब्जर्व एनी स्टार दैट हैज़ एंडेड अप वाइट डॉर्फ, क्योंकि हमारी यूनिवर्स को बने कितना अर्सा हुआ है 13.7 बिलियन ईयर्स, और सन लाइक स्टार को वाइट डॉर्फ बनते हुए कितना टाइम लगता है 10 बिलियन ईयर्स। तो अगर एक स्टार था जो कि वेरी अर्ली यूनिवर्स में भी अगर सन लाइक स्टार, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि तब मैसिव स्टार्स बने थे, तो अगर टाइप 2 स्टार्स जो थे या सेकंड जनरेशन ऑफ स्टार्स जो थे, अगर उन्होंने भी सन लाइक स्टार्स बनाए हैं तो भी उन्हें अभी इतना टाइम नहीं हुआ कि वो वाइट डॉर्फ से अगली स्टेज में जा सकें। सो दीज आर ऑल द स्पेकुलेशंस दैट आर बीइंग प्रेडिक्टेड बाय। लेकिन थ्योरेटिकली तो ऐसी कोई बात है नहीं कि एक्सप्लोड हो सकते हैं वाइट डॉर्फ्स। थ्योरेटिकली भी देखे तो हमने नहीं है वाइट डॉर्फ्स अभी तक, लेकिन थ्योरेटिकली तो एक स्टेबल कंडीशन है क्योंकि डिजेनरेसी प्रेशर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नाउ दे आर रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है ना, ऑल्दो इट इज़ डिजेनरेसी एनर्जी, लेकिन रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब वो एनर्जी ख़त्म हो गई, मैथ तो है ना, ग्रेविटी तो नहीं ख़त्म हुई नहीं, लेकिन दूसरे एविडेंस नहीं है ना कि उसको साइज उसका बड़ा हो रहा हो। नहीं, एविडेंस भी नहीं है। सेकेंडली साइज ना भी बड़ा हो रहा हो तो एक्चुअली ग्रेविटी तो है ना, मैथ तो लॉस नहीं ना वो कर रहा, मैथ लॉस नहीं कर रहा। ये कि ऑलरेडी इट हैज बिकम अ वाइड डॉर्फ एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्लोजन। जी जी, वो तो उस स्टेज के ऊपर आ गया, एक्सप्लोड होने के बाद इट हैज बिकम अ वाइड डॉर्फ। जिस तरह ब्लैक होल इज अ एंड स्टेट व्हिच इज अ स्टेबल स्टेट,
ठीक है ना, इस तरह white dwarf is a stable state. स्टेबल स्टेट है। And so vice versa, if there is an exploding white dwarf there, then it could be a exploding black hole as well. ये फिर यही हो उसमें ये होगा कि ना वाइट डॉर्फ Prediction है। पहले से एलिमेंट्स मौजूद होंगे ये ग्रे वाले, तो ये कि ना अगर उसका कोई मर्जर हो गया किसी और स्टार के साथ तो वो रिलीज हो, तो यही इसका मतलब वो फट नहीं सकता वाइट डॉर्फ, फट नहीं सकता, मर्जर से जबरदस्ती उसके अंदर से किसी तरह निकल गए एलिमेंट्स। लाइक इफ यू हैव हर्ड ऑफ टाइप 1a सुपरनोवा, तो टाइप 1a सुपरनोवा क्या होता है? इट्स ए बाइनरी स्टार सिस्टम जिसमें एक जो है वो रेड जाइंट होता है एंड अदर इज अ वाइट डॉर्फ, और क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो वो क्या करता है, वो दूसरे की मास को अपने ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है, एक्रीट कर रहा होता है अंटिल इट कम्स द चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है ना। और चंद्रशेखर लिमिट को जैसे ही वो एक्सीड करता है इट एक्सप्लोड्स, और हो सकता है कि एक्चुअली उस एक्सप्लोजन की बात हुई है कि वो वाइट डॉर्फ क्योंकि सेंटर में है तो इट इज़ एक्चुअली एक्सप्लोडिंग। टाइप 1a सुपरनोवा ये है। सो वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। So thank you for the attention. अच्छा सर, जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं हमारे कितने हैं टोटल? 112 होते हैं, 113 होते हैं, पता नहीं। 120 तक पहुंच गए आप। हाँ, तो ये जो यू वाले जो होते हैं उनसे भी हम ये है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन सकते हैं, या फिर एक उसकी लिमिट है, उससे आगे हम नहीं जा सकते कि हम जितने मर्जी बड़ा कर लें, ऐसा कोई है? एक्चुअली जैसे जैसे हम हायर एटॉमिक मास की तरफ जाते हैं ना, तो एक रेशो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की, आपने पढ़ी हुई है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहाँ से शुरू होते हैं? रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं, न्यूट्रॉन्स तो होते हैं, प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं। प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है ना, न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको स्टेबल रखने के लिए। न्यूट्रॉन्स को आप इस तरह से लें कि वो ग्लू पैदा कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द स्ट्रॉन्ग फोर्स टू अटैच द प्रोटॉन्स, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं हो सकती। मतलब दैट्स व्हाट आई हैव एक्चुअली, हाँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए हम मैसेज की तरफ नहीं जा पाते। सर ये जो बाइनरी स्टार सिस्टम्स होते हैं और हाँ जी, स्टार सिस्टम्स अलग से होते हैं, ये किस क्लास में आते हैं? जो आपने बताया बाइनरी स्टार्स, हाँ, एक्सीलेंट क्वेश्चन। मैं उसको इतना ज़्यादा कवर नहीं कर सका, मेरा ज़्यादा यही था कि हमें पहले अंडरस्टैंडिंग हो कि स्टार्स क्या होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टार्स इन आर यूनिवर्स आर बाइनरीज, ठीक है ना। जब भी मैंने जिस तरह से आपको मॉलिक्यूलर क्लाउड या नेबुला के बारे में बताया, तो नेबुला के अंदर कंडीशन इस तरह से बनती हैं कि नॉर्मली बाइनरीज की फॉर्म में, वो पार्टनर्स के फॉर्म में जो है ना स्टार्स बनना शुरू होते हैं, और अल्टीमेटली दे रोटेट अराउंड ईच अदर। तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्टार्स की तरह ही होते हैं, लेकिन देयर एंडिंग स्टेज कैन बी डिफरेंट। अब बाइनरी स्टार्स के अंदर भी टाइप्स आ जाती हैं। सम आर कॉल्ड विजुअल, हाँ, विजुअल बाइनरीज होते हैं जो कि आपको लग रहे होते हैं कि अच्छा बहुत करीब है, लेकिन दे आर बाइनरीज ओनली ड्यू टू योर आई साइट, हमें दूर से लग रहे होते हैं। सम आर कॉन्टैक्ट बाइनरीज। कॉन्टैक्ट बाइनरीज क्या है कि उनका मटेरियल एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा होता है, ग्रेविटेशनल लेंस की वजह से भी होते हैं। सो उनका जो स्टार्स हैं, स्टार्स के अंदर डिफरेंस नहीं होता, दे आर द सेम स्टार्स लाइक अदर स्टार्स, लेकिन उनकी जो एंडिंग स्टेज है दैट कैन बी डिफरेंट। कि अगर एक ने दूसरे को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो वो जल्दी पहले एक्सप्लोड हो सकता है, जिसकी वजह से दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। उसकी जो स्टेज लेटर स्टेज ऑफ इट्स लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। सो दीज आर द फिनोमेना दैट वी ऑब्जर्व इन बाइनरी स्टार्स। सर जो आपने स्टार्स की एवोल्यूशन का बताया था, जी। जब फिर रेड जाइंट्स वगैरह बन जाते हैं, इसमें भी फिर इनकी क्लास चेंज हो जाती है, ओ से लेके ए वगैरह तक चले जाते हैं, क्लास सेम रहती है? क्लास चेंज होती है ना। क्लास मैंने शायद सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया या आपने ऑब्जर्व नहीं किया। क्लास इज़ ओनली रिलेटेड टू द टेम्परेचर, क्योंकि जब शुरू में हमने स्पेक्ट्रा को ऑब्ज़र्व किया तो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन से उसको ऑब्ज़र्व किया, और ब्लैक बॉडी जो लाइट कर्व है वो हमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन देती है वो उसके टेम्परेचर की देती है फ्रॉम द पीक वेवलेंथ, और उसी पीक वेवलेंथ से हमने उनको डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर डाल दिया। फिर हमने क्या किया, उनके अंदर अब्जॉर्प्शन लाइंस देखी, और वो जो अब्जॉर्प्शन लाइंस थी दोज वर वेरी इंटर रिलेटेड विद द टेम्परेचर। क्यों?
क्योंकि जो जितना मैसिव स्टार होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, हैवी रिएक्शन, टेम्परेचर उतना ज़्यादा है। जब ज़्यादा टेम्परेचर है, इट हैज़ द मोर कैपेसिटी टू पुट आउट द इलेक्ट्रॉन, इवन दोज इलेक्ट्रॉन विच आर वेरी क्लोज टू देयर न्यूक्लियस, ठीक है ना। और जो सबसे स्टेबल एटम है इन द पीरियोडिक टेबल विच इज़ हीलियम, अगर वो उसके भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में कामयाब हो जाता है वो वाली लाइट, इट मीन्स इट इज़ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ लाइट। और अगर उसमें हमें अब्जॉर्प्शन मिलती है, वी कैन डिसाइफर कि ये जो स्टार है ये बहुत ज़्यादा हॉट स्टार है, एंड दैट्स व्हाई वी क्लासीफाई इट इनटू द ओ टाइप स्टार्स। इसलिए ओ टाइप स्टार्स के अंदर क्या हो रही थी अब्जॉर्प्शन, हीलियम के अंदर वेरी फार लेफ्ट पे जो एब्जॉर्प्शन हो रही थी वो हीलियम के अंदर होती है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दी वेरी हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स जो कि उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज़ इट। तो द थिंग इज़ कि वो टाइप चेंज कर सकते हैं। टाइप चेंज करने का क्या मतलब क्या है कि उसकी एग्जैक्टली टेम्परेचर जो ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि उसने अपनी इग्निशन ज़्यादा कर दिया है, उसने हैवी एलिमेंट्स को फ्यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो अब वो एक अलग कैटेगरी के अंदर शिफ्ट हो गया है। तो एक स्टार जो है वो सारी ज़िंदगी एक टाइप के अंदर नहीं रहता, और ख़ास तौर पे जो मैसिव स्टार्स होते हैं, पहली चीज़ दे आर वेरी शॉर्ट लिव स्टार्स बिकॉज ऑफ देयर हैवी मास, एंड सेकेंडली they don't lie in the same type for their whole lifespan, they change. और thirdly, एक स्टार की जो पूरी डेस्टिनी है ना उसकी लाइफ स्पैन की, वो उसकी फॉर्मेशन के दौरान ही लिख दी जाती है। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन कितना मैस कलेक्ट कर रहा है, और वो जो मैस है वो ही डिफाइन करता है हाउ मच लॉन्ग दैट स्टार वुड लिव। So the destiny of that star is locked when the star is being formed. Unless कोई binary ना बन जाए, टक्कर ना हो जाए। हाँ, of course. लेकिन again उसकी फॉर्मेशन में पता लग जाएगा कि इसके आसपास का है। वो तो थोड़ा मुश्किल है ना पता लगाना। नहीं, जैसे ही वो अपना स्टेलर जो उसका इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, उसको वो क्लियर आउट करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि देयर इज ए बाइनरी बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है ना। रोग स्टार्स भी होते हैं ना, रोग स्टार्स, रोग वो स्टार्स नहीं होते, रोग प्लैनेट्स होते हैं। रोग प्लैनेट्स होते हैं, रोग स्टार्स नहीं होते। रोग प्लैनेट्स हम क्यों कहते हैं, रोग प्लैनेट्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी स्टार के साथ अटैच नहीं है स्टार ना। के साथ अटैच नहीं होते, तो रोग, और वो हमें क्यों ऑब्जर्व करना मुश्किल होते हैं, व्हाई दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। लाइट ही नहीं है, कोई लाइट ही नहीं है, लेकिन स्टार्स की तो डेफिनेशन यही कहती है कि उनकी लाइट है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो के और एम टाइप स्टार्स हैं दे आर मच डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। तो जब हमने एक गैलेक्सी के मैस को डिटरमिन किया, ठीक है ना, मैस को कैसे डिटरमिन करेंगे, दो तरीके हैं। एक, हम नंबर ऑफ स्टार्स, कितने स्टार्स हैं उनको हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया हमारा विजिबल तरीके से, हमने उसका मैस निकाल दिया फ्रॉम द विजिबल, यू कैन से विजिबल मैस। लेकिन फिर हमने उसकी ग्रेविटी को ऑब्जर्व किया, तो वहाँ से हमें पता लगा कि देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमने जब अपनी टेलीस्कोप्स को और ज़्यादा वेवलेंथ स्पेक्ट्रम के अंदर इंक्रीज़ किया, लाइक के फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड, तो फिर इंफ्रारेड में हमें बहुत सारे स्टार्स मिले जो कि मैंने के और एम टाइप स्टार्स कहे हैं। तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, ऑल्दो दे आर वेरी स्मॉल, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो मैस उनका काफ़ी रोल प्ले कर रहा था इन द मैस ऑफ द होल गैलेक्सी। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी थी जो कि साइंटिस्ट अभी तक नहीं इनकाउंटर कर पा रहे थे। रोग स्टार ये हो सकता है ना कि ऐसा स्टार जो किसी गैलेक्सी के साथ अटैच नहीं है, वो ऐसे ही फिर रहा है गैलेक्सीज के बीच में, वो रोग स्टार हो सकता है। ये पहली जो स्लाइड है ना उसका आंसर है, मौला जेट इज अ रॉक स्टार। एक्सीलेंट, बिल्कुल। ये तो रॉक स्टार्स हैं, इनकी अपनी लाइफ है और ये अपनी लाइफ विदाउट एनी इन्फ्लुएंस जी रहे हैं। आपके जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर ये है कि ऑफ कोर्स रॉक स्टार्स एक वजह से बन सकते हैं, जब गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं। जब गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं तो जो स्टार्स हैं वो ग्रेविटेशनली डिस्टर्ब होते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से, लेकिन अकेला स्टार फिर भी नहीं होता। अब हमारी भी जो गैलेक्सी है ना, ऑल्दो इट्स ए स्पाइरल गैलेक्सी, लेकिन जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं, आपने पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लस्टर्स, one is open cluster, one is globular cluster. Globular clusters are the old age stars,
और जो हमने ये HR डायग्राम पढ़ी है ना, हमने उन ग्लोबुलर क्लस्टर्स को स्टडी करते हुए पढ़ी है, क्योंकि उसमें हमें हर एज का स्टार मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो ओपन क्लस्टर्स होते हैं, ओपन क्लस्टर्स वो होते हैं जो स्टेलर नेबुला से बन रहे होते हैं, जहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड स्टार्स होते हैं, लाइक प्लेडीज क्या आपको पता होगा, तो गैलेक्सी का पार्ट होते हैं। हम रोग क्लस्टर्स कह सकते हैं, दैट्स एक्चुअली ये जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं, दीज आर द रोग क्लस्टर्स, कि ये उसका पार्ट नहीं है गैलेक्सी का, दे आर अबव एंड बिलो इन द हेलोज। तो ये अलहदा से उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है, सोसाइटी बनाई हुई है, और वहीं पे ये शुरू से लेके अब तक जो है ना वो इकट्ठे फिर रहे हैं। सो दिस इज़ इट, दिस इज आई हैवंट हर्ड ऑफ या स्टडीड, मैंने रोग प्लैनेट्स पढ़े हैं, इट्स माय फील्ड। प्लैनेट्स तो पता है आपको, हाई बॉल प्लैनेट आपको तो पता होगा। आपने पिछली दफा जिक्र भी किया था, लेकिन आपने नाम इनका नहीं लिया था। हाई बॉल प्लैनेट्स ये होते हैं कि ना, मतलब वो ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो अपने स्टार के इतने करीब होते हैं और वो टाइडली लॉक्ड होते हैं। आपने बताया था इसका, जो ऐसे प्लैनेट्स जो कि अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड होते हैं और करीब होते हैं, तो उनका वो वाला फेस जो कि स्टार को फेस कर रहा है वो जल के राख हो जाता है, और जो दूसरा वाला जो साइड है उधर पार्ट है वो कूल होती है, उधर कूल होती है। एक्सट्रीम हॉट एंड हाँ, उधर कोई लिक्विड वाटर भी शायद एग्जिस्ट करता हो, दूसरी तरफ डेजर्ट हो, इसको आईबॉल प्लैनेट कहते हैं। और दूसरी भी प्लैनेट नहीं मैंने पढ़ा, ये विकिपीडिया पे है, ये इसको कहते हैं आईबॉल प्लैनेट है। उसकी दूसरी वेरिएशन ये है कि ना वो थोड़ा दूर हो स्टार, तो उसकी जो फेसिंग वाली साइड है वो टाइडली लॉक्ड है, फेसिंग वाली साइड पे लाइफ है वो, क्योंकि थोड़ा दूर है, और जो दूसरी साइड है वो फ्रोजन है, क्योंकि वहाँ पे ठंड है इतनी ज़्यादा। इस तरह के प्लैनेट्स भी होते हैं। प्लैनेट्स ऑफ कोर्स, जो मेरी स्टडी है वो भी इसी तरह के प्लैनेट्स की, बिकॉज़ आई एम स्टडीइंग यूरेनस इज द एग्जांपल, No, यूरेनस और नेपच्यून, नहीं, जिसकी एक साइड जो दैट इज टुवर्ड द सन। नहीं ये टाइडली वो रोटेट कर रहे हैं। द थिंग इज के हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स नहीं है टाइटली लॉक्ड, लेकिन हमारा मून टाइटली लॉक है, ओके, टाइडली लॉक्ड, नॉट टाइटली लॉक्ड, नहीं टाइडली लॉक्ड, यानी कि वो अपने गिर्द उसकी जो रोटेशनल मोशन है वो सिंक्रोनाइज्ड है विद द रेवोल्यूशनरी मोशन अराउंड द अर्थ। और ये तो मून का है ना, क्योंकि वो इतनी वेसिनिटी में है कि अर्थ की ग्रेविटी ने उसको कैप्चर कर लिया है। एंड सेम गोज विद द प्लैनेट्स विच आर वेरी क्लोज टू देयर स्टार्स। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कैप्चर हो गई है, वो अब दोबारा और ज़्यादा रोटेट नहीं कर सकते। तो सर एक सवाल और है कि मतलब जो गैलेक्सी स्पायरल गैलेक्सीज हैं उनको ना स्पायरल शेप कैसे बन जाती है? एलिप्टिकल की तो फिर भी समझ आती है कि चलो एक ना वो मिल गए और उनमें से एक एलिप्टिकल सी शेप बन गई, लेकिन जो है ना आर्म्स किस तरह बनते हैं, इसकी क्या, इसके पीछे क्या साइंस है? इसका आर्म्स क्यों बनते हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन। एक दूसरी है बार्ड आर्म वाली, बार्ड जिसकी बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी। मैं समझ गया, आर्म्स क्यों बनते हैं? आर्म्स क्यों बनते हैं। आपको पता है हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना है? जी बिल्कुल पता है, मैं था उस टाइम, मैंने देखा। नहीं, स्टडी तो हुई है ना, स्टडी तो हुई है ना। सो वी नो कि सोलर सिस्टम में सेंटर में स्टार था, उसके अराउंड जो चंक्स थे वो इकट्ठे हुए, वो प्लैनेट्स की शेप में कन्वर्ट हो गए। सो ये भी क्या है, डिस्क शेप में हमारा जो सोलर सिस्टम है। तो सेम एनोलॉजी, ऑलमोस्ट सेम एनोलॉजी, ऑल्दो कि वो एक डिफरेंट फील्ड है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ गैलेक्सीज और कैसे फॉर्म होती हैं। अब ये सबसे जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, जो मैं आपसे तवक्को कर रहा था कि पहले स्टार्स बने या गैलेक्सीज बनी? हो सकता है कि गैलेक्सीज बनी हो, वहाँ पे मटेरियल था और वहाँ से मटेरियल इकट्ठा हुआ। नहीं, कोई वो उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। गैलेक्सी डजंट मीन कि वहाँ पे स्टार हो सकता है कि वहाँ पे मीडियम हो, वहाँ पे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स हो। एग्जैक्टली, पहले फ्रेगमेंटेशन हुई है, फ्रेगमेंटेशन मैटर की, उसके बाद स्टार्स बने, और वो फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली गैलेक्सी को एक साथ ही बने हो ना, एक साथ ही बने हो ना, दोनों स्टार्स भी बन गए और जहाँ पे वो सारे बहुत सारे तो स्टार्स अभी तक गैलेक्सी बन गई। हाँ, तो ये डिबेट है। अब एक ग्रुप ऑफ बेसिकली ही इज ड्राइविंग टुवर्ड हिज लोन स्टार फिलॉसफी। अच्छा, अब ये दो ग्रुप्स हैं एस्ट्रोनॉमर्स के। एक यही कहता है कि पहले स्टार्स बने हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स जिसे कहते हैं, और उससे जो मटेरियल बना उससे गैलेक्सीज बनी हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो ये कहता है कि जब बिग बैंग हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जब पूरी यूनिवर्स में फैल रही थी, तो वो हाइड्रोजन और हीलियम ने चंक्स बनाना शुरू कर दिए।
इस तरह ये हो सकता है शुरू हो गए वो कि जो डार्क मतलब मैटर हेलो डार्क मैटर, हाँ वहां पे उन्होंने अपने आप को accumulate बिल्कुल, करना शुरू बिल्कुल, किया। That बिल्कुल। were the first galaxies। बिल्कुल, इसीलिए जो हमें अभी तक की जो सबसे farthest galaxy, that's actually the very new born galaxy या very early galaxy जो हमें मिली है, वो purely star based galaxy नहीं है, वो एक बड़ी फजी सी गैस शेप्ड गैलेक्सी है, और उसकी जो शेप है वो भी एग्जैक्टली नेबुला टाइप है, कि वो कोई प्रॉपरली शेप्ड गैलेक्सी नहीं है। सो अगेन स्टिल डिबेट खास डिबेट है नहीं, मतलब ये ऐसी एक मतलब एक लिंग्विस्टिक सी एक डिबेट है कि मतलब डार्क मैटर तो था शुरू से, उसी ने तमाम स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया हमारे यूनिवर्स में। तो उसने ये कि उससे ना मतलब ग्रेविटेशनली ना प्याले बना दिए, उसने जगह बना दी Dark halos जहाँ पे कहते हर हैं, चीज़ dark आके halos, सेटल हो जाएगी, exactly, ठीक dark है। halos। उन्होंने ना लेआउट्स बना दिए डार्क मैटर ने कि इधर गैलेक्सी आएगी, और वहाँ पे वहीं पे स्टार्स ने बनना था, क्योंकि सारा मैटर ही वहीं पे वहीं है। पे स्टार्स नहीं बनना है, वहाँ पे फ्रेगमेंटेशंस ने बनना है, फ्रेगमेंटेशन से फिर स्टार बनते हैं, और वो फ्रेगमेंटेशंस कहा जाता है कि दीज आर द अर्ली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप CMB आपने देखी है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, तो आप वहाँ पे जो चंक्स देखते हैं, रेड चंक्स, दोज आर द एरियाज जो हॉट हैं, जहाँ पे ज़्यादा मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट मैटर डजेंट मीन कि वो स्टार्स को शो कर रहा है, तो वो एक्चुअली बड़ी एरिया को शो कर रहा है जो कि गैलेक्सी लेवल के ऊपर बनते हैं एरियाज। हाँ वो तो, हाँ उस टाइम तो खैर बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म थी हमारी यूनिवर्स, लेकिन बस अब ऐसा ये ऐसा फिर वो फैलती एक गई। ऐसी एक लफ्जी सी डिबेट है, मतलब वो उसके हाँ, जितनी स्ट्रक्चर debate बन बढ़ती गया डार्क, उसमें स्टार्स बनने लग गए, और वो जब इतने ज़्यादा हो गए तो वो वाजे विजिबली वो एक गैलेक्सी नज़र आने लग गई हमें। तो दोनों चीज़ों को हम कह सकते हैं कि एक साथ ही दोनों चीज़ें बन सो रही हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि स्पाइरल कैसे बनती है और एलिप्टिकल, तो स्पाइरल में भी क्या होता है कि उसके पास मटेरियल होता है, ठीक है ना। बल्ज में सुपरमैसिव ब्लैक होल है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है कि नियर बाय स्टार्स को अपनी तरफ सेंटर की तरफ रोटेट करवा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, तो जो दूर के स्टार्स हैं, अब हमारा जो सन है, इट इज़ रोटेटिंग अराउंड द सेंटर ऑफ स्पाइरल गैलेक्सी, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन हमारा जो सन है वो सिर्फ सुपरमैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से नहीं रोटेट कर रहा, सिर्फ उसकी ग्रेविटी की वजह से नहीं रोटेट कर रहा। Actually, it is rotating due to the all material, all the stars and all the mass enclosed in the circle. ये इसी तरह है ना, मतलब जिस तरह वो अपना वॉश बेसन होता है, उसके अंदर हम मतलब वो हमने ब्लॉक किया होता है पानी को, और हम निकाल लेते हैं, पानी भरा होता है। तो इसी तरह ना यूँ स्पायरल वॉर्टेक्स बनता है, जब पानी क्योंकि इस साइड से भी आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, वो सेंटर में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी इमेजेस, उस वाली इमेजेस को आप देखें ना, वो वाली जो कोने वाली इमेज है, कि इधर से भी मैटर आ रहा है, वो भी पहले के अंदर इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, उसकी वजह से आर्म्स बने हैं। आर्म्स बन रही है जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूलर क्लाउड्स हैं, जहाँ पे डेंसिटी वही ज़्यादा है। वॉर्टेक्स इसका मतलब है कि Vortex स्पायरल आर्म्स के exactly, पीछे vortex वॉर्टेक्स है, ये वॉर्टेक्स है। यार वो तो आप हाइड्रोडायनेमिक्स में चले गए ना, it's not डायनेमिक्स ही Hydrodynamics होती है, है। हाइड्रोडायनेमिक्स ही स्टडी करते हैं गैलेक्सीज को और स्टार्स को बड़े लेवल पे। जो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, दैट इज अ फनल लाइक शेप, इट इज नॉट अ फनल लाइक, ये फनल ही है ना, ग्रेविटी का फनल है एक तरह से ये। लाइक दिस। नहीं, हाँ। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा स्पेस टाइम है ना, वो फनल के तौर पे, वो फनल की तरह है क्योंकि ना, जहाँ पे कर्व्ड जितनी है। ज़्यादा ग्रेविटी होती है, वो उतना स्पेस टाइम को ज़्यादा कर्व करता है। एग्जैक्टली। वो तो वो आप दे देता है, लेकिन ये इट इज नॉट शेप ऑफ द गैलेक्सी इज नॉट बाय वर्च्यू। उसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाउ डिड वी नो अबाउट द डार्क मैटर, हमें उसकी एग्जिस्टेंस का कैसे पता लगा? एक तो मैंने आपको तो ब्लॉक कर दी उसने लाइट, नहीं ब्लॉक नहीं की, एक तो मैंने आपको उसकी रीज़न बता दी कि जो आउटर स्टार्स थे वो उसी स्पीड के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं जिस तरह इनर स्टार्स हैं। हालांकि केपलर लॉ ये नहीं कहता, केपलर लॉ यही कहता है कि जो आउटर स्टार्स हैं उनको स्लोली रोटेट करना चाहिए। सो देयर इज सम अदर ग्रेविटी दैट इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन दैट ऑन दो स्टार्स, और अगर ग्रेविटी है देयर शुड बी सम मैस, क्योंकि अभी तक हमने जो मैस पढ़ा है, जो हम नॉर्मल ऑर्डिनरी मैस को जानते हैं, वही ग्रेविटी एग्जर्ट करता है, अदर देन देयर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो हमने उसे डार्क मैटर का नाम, लेकिन जो दूसरी डिटेक्शन है जो कि डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है, वो है आइंस्टाइन रिंग्स। अब आइंस्टाइन रिंग्स आप में से किसी ने पढ़े हो? एग्जैक्टली, ग्रेविटेशनल लेंसिंग जिसे हम कहते हैं, कि जब हमने बहुत फार डिस्टेंस स्टार्स को या फिर सुपरनोवास को एक्सप्लोर करते या फिर फार डिस्टेंस गैलेक्सीज को देखा, तो एक गैलेक्सी का एक रिंग सा बन रहा था, ठीक है ना, अराउंड स्पेसिफिक चंक्स क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी था, उसके अराउंड एक पूरा रिंग बन रहा था। इट मीन्स एग्जैक्टली, इट मीन्स कि उस क्लस्टर ने क्या किया हुआ है,
कर्व किया हुआ है स्पेस टाइम को, फनल बनाया हुआ है। मैंने क्वेश्चन इनका ये नहीं है, इनका क्वेश्चन ये है कि पहले जो गैलेक्सी है दैट इज आपकी इलिप्टिकल गैलेक्सी, हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू स्पाइरल एंड देन टू बर्ड स्पाइरल। नहीं, एलिप्टिकल कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती स्पाइरल में। नहीं, मेरा अलग सवाल था। मैं कह रहा था कि एलिप्टिकल की तो समझ आती है कि एलिप्टिकल कैसे बन गया, क्योंकि एक सिमेट्रिकल सी शेप है, हर तरफ से सेम लगती है, लेकिन ये देखने में बज़ाहिर, लेकिन अब बोलते बोलते मुझे समझ आ गई बीच में कि यूं यूं आ रहा है मैटर और उससे बन रहा है। अब मुझे एलिप्टिकल अजीब लग रही है मुझे कि एलिप्टिकल कैसे बनी। कि फॉर मी स्पाइरल इज मोर स्पाइरल नेचुरल है क्योंकि वो कंसीवेबल, फनल की तरह आ रहा है एग्जैक्टली। मैटर। एलिप्टिकल जो है वो कंसीवेबल नहीं है। एलिप्टिकल किस, और वो बड़े साइज की भी होती है एलिप्टिकल, बहुत बड़े साइज के होते हैं। एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा नहीं, एंड्रोमेडा इज स्पाइरल। स्पाइरल है एंड्रोमेडा। अच्छा, लेकिन वैसे ये काफी मोर बड़ी होती है। मैसिव देन एज कंपेयर टू आवर मिल्की वे, 2 टाइम्स मैसिव है। यानी कि हमारे मिल्की वे में 200 बिलियन स्टार्स हैं, 200 अरब, तो उसके अंदर 400 बिलियन स्टार्स हैं, तो इट्स 2 टाइम द साइज। लेकिन इट्स अगेन स्पाइरल गैलेक्सी। जो एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं वो राउंड शेप होती हैं, इट्स राउंड शेप, और हर तरफ उसके जो है ना वो स्टार्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो ओल्ड स्टार्स हैं, देयर इज़ नो मटेरियल लेफ्ट फॉर न्यू स्टार फॉर्मेशन। तो अभी तक हमें मॉर्फोलॉजी मिली है, ना तो हमने किसी गैलेक्सी को पूरी टाइम स्पैन में एलिप्टिकल बनते हुए देखा है, ना हमने पूरे टाइम स्पैन में स्पाइरल बनते हुए देखा। व्हाट वी हैव सीन इज़, अच्छा एक को देखा वो एक अलग स्टेज पे थी, दूसरी को देखा उससे एक्स्ट्रा नेक्स्ट स्टेज पे थी, तो हमने वहाँ से एक्स्ट्रापोलेट किया कि दिस इज़ द लाइफ स्पैन या दिस इज़ द एवोल्यूशनरी पीरियड दैट इज़ adopted by these type of galaxies। इसकी क्लासिफिकेशन हबल ने भी तो की हुई है, हबल डायग्राम है ना उसके। हबल ने की हुई है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जो ग्राउंड बेस टेलीस्कोप जिसमें नहीं, हबल डायग्राम कहते हैं इसको, जिसमें प्लेसमेंट ऑफ गैलेक्सीज है। हबल डीप फील्ड है एक। हबल ने क्लासिफिकेशन भी की थी शेप्स ऑफ गैलेक्सीज की। उसने बताया था कि एलिप्टिकल होती हैं, स्पाइरल, और काफ़ी ज़्यादा उसने कैटेगरी बनाई थी उसने पूरी, क्योंकि उसने ऑब्जर्व की हैं इतनी सारी गैलेक्सीज। उसी ने तो बताया था सबसे पहले कि और गैलेक्सीज भी एग्जिस्ट करती हैं। उससे पहले तो लगता था कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी पूरी यूनिवर्स है। उसके अलावा भी एक और सर्वे है, स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे। ये भी एक टेलीस्कोप है, ऑल्दो इट्स ए ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप, लेकिन इट हैज़ ऑब्जर्व मोर देन 100 मिलियन गैलेक्सीज। और उसने यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बनाया है कि हमारी यूनिवर्स के अंदर किन जगहों पे ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, किन जगहों पे कम है, तो किस तरह से फिलामेंट्स किस तरह से बने हुए हैं। तो टू नो द अर्ली स्टेज ऑफ द यूनिवर्स, ये किस तरह इवॉल्व हुई है, क्योंकि अगर हमें अब का स्ट्रक्चर पता लग जाए देन वी कैन गो बैक इन टाइम कि जब ये करीब थी, जिस तरह से हमने बिग बैंग का अंदाज़ा लगाया कि बिग बैंग कब हुआ है, तो हम एक्सपेंशन को रिवर्स कर सकते हैं। देन वी वुड नो कि अच्छा इस तरह के क्लम्स होने चाहिए थे, और फिर हम उसे स्टडी करेंगे इन द यूनिवर्स यूजिंग अदर सर्वेज, और उसे कंपेयर करेंगे विद आर स्टडी कि इन दोनों के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसी और कितनी सिमिलैरिटी, और जितनी सिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी उतना हम यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। सर, आपने कहा था कि स्टार्स को जो है क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है स्टडी करते हैं, कि स्टार्स को जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में ऊपर स्विच ऑन आप कर लें। अच्छा, उसको जो है क्लस्टर्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं ना, मतलब मल्टीपल स्टार्स को। जी जी। तो अगर गैलेक्टिक हैबिटेबिलिटी फाइंड आउट हमने करनी है तो हम किस तरह फिल्टर आउट करेंगे कि कौन सा, मतलब लास्ट लेक्चर में आप नहीं थी? नहीं। तो अगर मैं ये है हमारी गैलेक्सी, लेट्स सपोज, ठीक है ना, और ये है वो आर्म्स, ठीक है। तो इन आर्म्स के दरमियान में आप देखिए आपको वेकेंट स्पेस मिल रही है। इन वन ऑफ दीज वेकेंट स्पेसेस लाइज आवर सन, क्योंकि इन वेकेंट स्पेसेस के अंदर एक्सट्रीम इवेंट्स नहीं हो रहे, ना तो नए स्टार्स बन रहे हैं और ना ही एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, ठीक है ना। इट मीन्स कि ये बहुत नॉर्मल एक एनवायरनमेंट है, बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट है, एक कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा। सो दीज आर नोन एज द गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन।
जो कि स्पाइरल आर्म्स के दरमियान का एरिया है, स्पाइरल आर्म्स में नहीं, दो स्पाइरल आर्म्स के जो दरमियान का रीजन है, दीज आर द रीजन्स जहाँ पे अगर नए सोलर सिस्टम्स बने हैं तो उनके गिर्द जो भी प्लैनेट्स हैं उनको एक फिजिबल इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे ना तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेडिएशंस आ रही हैं फ्रॉम देयर नियर बाय, और ना ही वो बल्ज के करीब हैं कि जहाँ पे सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो एक्रीट कर रहा है और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. सो दोज आर द रीजन्स वेयर वी कैन determine or we can discover Earth like planet with life on existing on it, life like our own. जो क्लासिफिकेशन में आपने बताया था कि जो 0 to 9 रेंज है, जी जी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि although कि हमने A, O और A मिसाल के तौर पे we have sorted out the we have differentiate between O and A. Okay, sir. O and A. कि there is a O type star and a A type star. Got it? तो लेकिन उस और A टाइप के दरमियान में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. किस चीज़ का डिफरेंस है? टेम्परेचर का डिफरेंस है, और जिसमें वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं जिस स्पेक्ट्रल लाइंस में, वो उसमें काफ़ी डिफरेंस है. तो फिर हमने उसको फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू 10 सब कैटेगरीज, O1, O2, O3 एग्जैक्टली, ताकि हम ज़्यादा एक्यूरेटली स्टार्स को सेपरेट आउट कर सकें इनटू देयर क्लासिफिकेशंस. डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन नहीं है एक्चुअली. ये वो सोर्सेज हैं या ये वो यू कैन से कि इनकी हमें एग्जिस्टेंस पता फील होती है, ठीक है ना, बट वी नो नथिंग अबाउट देम. दैट्स वाई वी कॉल देम डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी. वी कैन कॉल एनी नेम, हम उन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमने अपनी ईजीनेस के लिए कि हम पता नहीं क्या जानते हैं उनके बारे में, तो हमने कह दिया कि ये वो मैटर है जो हमें पता नहीं लग रहा कि वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसकी ग्रेविटी मौजूद है, तो इसलिए ये डार्क है. सो डार्क मैटर. अब डार्क एनर्जी कनेक्शन नहीं है, मैं उसी डार्क एनर्जी की तरफ आ रहा हूँ. एक ऐसी एनर्जी है जो कि यूनिवर्स को एक्सपेंड करवा रही है. एक ऐसा प्रेशर है, एक आउटवर्ड प्रेशर है जो कि सब गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर लेके जा रहा है, लेकिन वी डोंट नो, क्योंकि ना तो कोई वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ना कोई नए स्टार्स बन रहे, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंड हो रही है. सो जो स्पेस टाइम को, यानी कि स्पेस को जो चीज़ एक्सपेंड कर रही है ना, दैट्स कॉल्ड डार्क एनर्जी. ये जो E इज इक्वल टू MC² है, जी जी, जो यहाँ भी मैटर और एनर्जी का कनेक्शन है, जी ऐसे ही है. तो वो उसको भी हम मैटर बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं, तो वो एनर्जी डिफरेंट नहीं, है. वो एक्चुअली वही बात ना कि हमने उसे एनर्जी का नाम दे दिया, लेकिन हमें सोर्स नहीं पता. अब जिस तरह से अब एक इंटरप्रिटेशन है डार्क मैटर की, क्या हो सकता है कि देयर इज़ ओनली आवर यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स अकेली एक यूनिवर्स नहीं है, देयर आर अदर यूनिवर्सेस, जिसे हम मल्टीवर्स का एक नया कंसेप्ट आया है टू फुली अंडरस्टैंड द डार्क मैटर, एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर. वो क्या है कि हमारी यूनिवर्स के साथ एक और यूनिवर्स है जो कि एम्बेडेड उसके साथ है बिल्कुल. तो वहाँ का जो नॉर्मल मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर है, उसकी जो ग्रेविटी है वो हमारी यूनिवर्स में डार्क मैटर की ग्रेविटी का काम कर रही है, कि वो नॉर्मल मैटर नहीं एग्जिस्ट, हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसकी ग्रेविटी की हमें एग्जिस्टेंस फील हो रही है. सो इट्स अगेन, हमें इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, ठीक है ना. इसीलिए तो ये स्ट्रिंग थ्योरिस्ट क्यों वो 11 डायमेंशंस की बात करते हैं कि बाकी जो यूनिवर्स हैं वो दूसरी डायमेंशंस के अंदर है, ठीक है ना, वे वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट ऑब्जर्व. तो उस यूनिवर्स का जो नॉर्मल मैटर है वो हमारी यूनिवर्स में डार्क मैटर का रोल प्ले कर रहा है. दैट्स व्हाट वी ओनली नो अबाउट दिस डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, बट वी डोंट नो द सोर्स. हमें जो नॉर्मल एनर्जी है जो कि सन से मिल रही है, हमें उसका सोर्स पता है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, वहाँ से क्या हो रहा है कि फ्यूज़ होके जो एक्स्ट्रा मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. जो मैस का डिफरेंस आता है जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का जो मैस है, इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू हीलियम. हीलियम का मैस इज बिट लोअर देन हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन. वो जो डिस्क्रिपेंसी है दैट्स कन्वर्ट इनटू द एनर्जी. लेकिन वो कौन सी एनर्जी है जो कि एक्सपैंड करवा रही है यूनिवर्स को, वी डोंट नो, लेकिन हमने उसे अपनी आसानी के लिए उसका नाम दे दिया, दैट्स डार्क एनर्जी. सर आई वांट टू आस्क क्वेश्चन कि वो जो आप कहते हैं क्लम्स इकट्ठे होते हैं जी जी, फॉर्म द स्टार, क्लम्स, व्हाट्स द स्टार्टिंग फोर्स दैट्स कॉजिंग इट? वो शुरू में मैंने बताया था कि जो स्टार फॉर्मेशन के जो कॉजेज़ होते हैं उनमें वन ऑफ द कॉजेज़ इज़ कि यही जो डार्क मैटर के एरियाज़ हैं इन द रीजन
ऑफ द गैलेक्सी, स्पायरल गैलेक्सी, तो जब उस डार्क मैटर रीजन में से मैटर मूव करता है तो जहाँ पे ज़्यादा हैवी उन्हें ग्रेविटी फील होती है तो वो एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। इट्स सेम लाइक आप एक ट्रैफिक से गुजर रहे हैं जहाँ पे ग्रेविटी को मैं नाम दूंगा विद द नो नोन एनर्जी दैट्स कॉजिंग इट। एक तो ये फोर्स है, एक ये कॉज है। दूसरा कॉज है कि मिसाल के तौर पे उसी एरिया में कोई स्टार एक्सप्लोड हुआ है, तो जब एक स्टार एक्सप्लोड हुआ है तो उसने शॉक वेव्स प्रोड्यूस किए हैं। जब शॉक वेव्स प्रोड्यूस किए हैं तो उसने जो मटेरियल था उसको एक तरफ धकेला है, जब धकेला है तो उसने फिर उनको इकट्ठा कर दिया है एक साइड पे। तो हमें जो अभी तक इमेजेस मिली हैं वो मिली, मैंने एक इमेज भी दिखाई थी हबल स्पेस टेलीस्कोप की कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है और उसके थोड़ा सा दूर करके एक नया स्टार फॉर्मेशन हो रही है शॉक वेव्स कि उसने उसको क्योंकि फ्रॉम द जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो ये कहता है कि जो चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे है, और जो चीज़ यूनिफॉर्मली मूव कर रही है वो तब तक करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो जब एक मरतबा से शॉक वेव मिल गई तो वो सारा मटेरियल जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगी वो क्लम्प होता रहेगा। और क्लम्प होने की उसे एक और रीज़न मिल गई है क्योंकि अब ग्रेविटी बढ़ रही है, जहाँ पे वो क्लम्प हो रहा है मैस बढ़ रहा है, ग्रेविटी बढ़ रही है, वो उसको एक्रीट करता रहेगा अनटिल अनलेस कि वो अंदर इग्नाइट ना कर दे रिएक्शन को। जब इग्नाइट करेगा रिएक्शन को तो फिर आउटर शेड को मतलब रिपेल कर देगा, उसको फेड आउट कर देगा और वो एक प्रॉपर स्टार की शेप ले जाएगा। थैंक यू। वेलकम।